Assalamu alaikum everyone. I hope you all are safe and sound. I welcome you all on the behalf of ICE Student Chapter UET Texla on this wonderful session. Myself Nehal Shafiq, Executive Member of ICE Student Chapter UET Texla. And myself Arfa Farooq, Executive Member of ICE Student Chapter UET. Starting with the name of Allah, I would like to call Usman Salim for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم. Jazakallah Usman. Now I would like to invite Mr. Nehal Shafiq for Naate Rasool Maqbool sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. खाक सूरज से अंधेरों का जाला होगा, खाक सूरज से अंधेरों का जाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। आप आए जब भी मांगो तो वसीले से उनके मांगो, जब भी मांगो तो वसीले से उनके मांगो। इस वसीले से करम और दुबाला होगा, इस वसीले से करम और दुबाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। जज़ाकल्लाह। Jazakallah Nehal. The mission of ICE is to put civil engineers at the heart of society. ICE is the center for the exchange of knowledge and a provider of resources to encourage innovation and excellence in the profession worldwide. ICE makes sure that high standards to become a professional civil engineer are met. It's important to us keep telling people what civil engineers do. Maintaining our tradition, we bring you another informative session about freelancing basics for content creators. So what is content creation? Content creation is the contribution of information to any media and most especially to digital media for an audience in specific context. Content is something that is to be expressed through some medium as speech, writing, or any of various arts for self-expression, distribution, marketing, and publication. In this webinar, our guests will be covering three main areas: how to build portfolio, how to build a community, how to sell your skills.
So today we have an award-winning entrepreneur chasing a vision of putting a book in every hand. He is CEO and the founder of Dastan. He has been part of Pakistan entrepreneurial ecosystem since 2014. He is the first and only Pakistani to receive Media Information Literacy Award from UNESCO and Commonwealth Youth Award. Currently, he is working with Institute of Emerging Career as Partnership and Placement Manager. Thank you, Sir Saeed Umar Abdi. We appreciate you being here and taking your time to join us. And all the credit of this informative webinar goes to Ma'am Tehmina. Our guest speaker joined us on the request of Ma'am Tehmina, and special thanks goes to our manager of this webinar, Ms. Minal, for her efforts. Now, without a further ado, I will turn this time over to Sir Saeed Umar Amri. Over to you, sir. Thank you so much for the kind introduction, and I'm really excited to be a part of it today. So before we go into the session, I also want to highlight that I am also an alumni of UET Texila. I've been there right where you are. So really excited to reconnect back with the alumni. So let me just please confirm me if you can see my screen. Is it visible? Yes, sir, you are. Okay, thank you. So today's session is all about freelancing basics for content writers. And what we will cover in this session is something that I want to learn from you. So before I go and tell you what are the things that I designed for today's session, I want to know from the audience that what exactly do you want to learn? Like हम लोगों ने mention किया कि our topic is about freelancing for content writers, but I just want to take some questions कि आप लोग एक certain expectation के साथ आए होंगे कि अच्छा आज हम ये session attend कर रहे हैं, so you want to learn these things. So if some 3 or 4 people can from the audience can tell me their expectations, so it would help me personalize the event in a much better manner. So the floor is open. You can unmute yourself, or maybe you can type the comments and moderators can communicate that to me. So it could be anything, जो भी आपके ज़हन में आता है, because being students, we always have these questions in mind. So what exactly do you want to learn? Sorry to interrupt, sir. Kindly raise your hand if anyone want to answer. We'll unmute them. Okay, so I can see some comments. How can we sell our skill of content writing? Yes, we will cover that. How to get a winning proposal. Okay. We want to start earnings or freelancing due to it. How to build compelling presence on platforms as content writers. Okay. So yes, we are covering pretty much these topics. Any other concerns किसी और का which they want me to address specifically? Efficient ways of content writing, where to start content writing. Okay. What actually content writing is? Okay, this is a very good question. Which software automates writing work? How to stand up against exploitation? Good questions. Okay, so I think more or less like 80% of the content outline that I have prepared, it does cover the things that you guys are asking. So पहले हम थोड़ा सा इसका framework understand करते हैं कि what exactly happens in the whole journey. The first thing that you need to focus on is make sure that you have learned a skill. कि अगर हम content writing की बात कर रहे हैं, तो what exactly is content writing, कितने types की होती है, कैसे होती है. So when someone comes to you, you should ideally be past stage 1, that is learning a skill. कि अगर कोई बंदा आके आपसे कोई चीज पूछे तो you should know the whole thing inside out. अगर आप technically sound हो चुके हैं, if you have learned the skill, then you move toward the next step, that is building your network. Building your network means that you go to the people, you go to professional community, professional events, and you try to
get yourself noticed. That is the step 2. But whenever you go to sell yourself, the first question which someone is going to ask you is, what do you do and what have you done? So आप कह देंगे okay, I'm a content writer, लेकिन जब अगला सवाल पूछेगा what have you done, so you should have some samples in your hand. This is something that we called a portfolio. Okay, what exactly is your portfolio? What is the past work or projects that you have done on your own? ये होना बहुत जरूरी होता है. और लास्ट में जब आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो जाता है and you are getting like good amount of work organically coming towards you, then you start building systems. क्योंकि अगर कंटेंट राइटिंग आप कर रहे हैं तो सारी जिंदगी हमने कंटेंट राइटिंग नहीं करनी. आइडियली द वे इट गोज इज कि वी बिल्ड अ सिस्टम जिसमें हम पहले ये इलस्ट्रेट करते हैं, ओके आई हैव डन लेट्स से x प्रोजेक्ट्स and in x projects I have seen that 80% of the projects have these 1 2 3 things common. So you draw a flow chart and you visualize the whole process, and then you pick a piece and then you try to automate it. You do the budgeting, you write down the JDs, job descriptions, and then you hire a person to do or take care of that one particular piece for you. And this is how you slowly transition from being a freelancer to being a company owner. So I just wanted to include this thing here because जब हम काम करना start करते हैं तो things evolve on their own. But you need to be aware of कि जिस journey की तरफ आप जाना चाहते हैं, where it will lead you. So इसके अंदर if I talk about myself, I started myself as a content writer. काफी टाइम मैंने content writing, blogging खुद से की. I found few platforms, उनके साथ में काम करता रहा, and then I got an opportunity to build my company. And when I built it, तो उसके अंदर फिर मैंने book creation को niche को choose किया, and then this is how I build the whole system around it. और अब हर piece जो आपको नजर आ रहा है इसके लिए there is a team in my particular company who take care of that thing. So this is generally how the things evolve. तो आज का specific हमारा एजेंडा है, उसमें हम 3 चीजों को देख रहे हैं. पहली चीज जिसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे वो प्रोफाइलिंग है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कंटेंट की टाइप्स क्या होती हैं और उसमें किन तरीकों से हम अर्न कर सकते हैं. आप में से मेजॉरिटी लोग आई थिंक सिविल इंजीनियरिंग के हैं. देयर आर अदर पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स एज वेल, सम आर फ्रॉम द टेक्नोलॉजी डोमेन एज वेल. सो इट डज नॉट मीन कि अगर आप सिर्फ टेक वाली साइड के ऊपर हैं या अगर आप अपनी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर हैं तो आपको कंटेंट का काम वहां नहीं मिलेगा. यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसकी जिंदगी का ये मकसद नहीं है कि उसने बैठ के सारी जिंदगी सर्किट ही बनाने हैं या सर्किट से डिजाइन करना है. If you have the basic knowledge, you can transition into alternate career types. और वो alternate career types होते हैं technical writing की. उसमें से एक part I think you guys have studied about technical report writing. That is one thing. But उसके साथ बहुत सारे और areas connect होते हैं जो कि आज हम थोड़ा सा discuss करेंगे, which would help you understand कि अगर आपको एक particular skill है तो what else can you do with it. Similarly, yeah, thesis is all comes in the academic writing. If you are writing a thesis for yourself, that's fine. But if you are writing a thesis for someone else, that is like academic dishonesty. So please don't do that. दूसरी चीज जिसमें हम बात करेंगे वो community की पे बात करेंगे कि क्या need होती है. Why do we need to be a part of community? इसकी simple सी example मैं ऐसे दूंगा कि जो अभी organization है ICE UT Texla chapter, this is a community. अगर ये community ना होती, we would not be having a conversation. So it is the importance of the community कि community आपकी जो individual needs हैं उसको address करती है. Then they mobilize the network, collective network they have, and then they arrange people, arrange speakers or arrange value for you. कि आप जब भी किसी community का part होते हैं, you are always getting a value out of it. So what is the value that you need and how you can create a community of your own or how you can join one? What are some of the opportunities that are available outside if you are a student? तो इन चीजों के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे और इसका जो कंक्लूजन होगा वो इस तरीके से होगा कि हम ये देखेंगे कि फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, उस पर साइन अप कैसे करते हैं, और उसके ऊपर अगर हम आगे अपनी गिग्स वगैरह बनाए तो उससे रिलेटेड कोई थोड़ी बहुत जो आपकी डिस्कशन होगी स्पेसिफिकली फ्रीलांसिंग रिलेटेड वो हम लास्ट सेक्शन में रखेंगे. सो कोऑर्डिनेटर से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज एवरी 15 या 20 मिनट्स के बाद मुझे पिंग कर दें ताकि आई नो कि आई एम गोइंग एट द सेम पेस. हमारे पास आई थिंक वी हैव 1.5 आवर्स
तो अगर हमें 30 या 20 मिनट्स के बाद पिंग कर दिया जाए तो वी वुड बी एबल टू कवर द सेशंस इन अ टाइमली मैनर। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्रोफाइलिंग की है। सो प्रोफाइल्स क्यों जरूरी होती है? प्रोफाइलिंग में आप ये चीज याद रखें कि दो तरह की प्रोफाइल्स हैं। एक प्रोफाइल वो होती है जिसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोफाइल, और एक होती है हमारी प्रोफेशनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल दो तरह की होती है। एक पर्सनल प्रोफाइल ऐसी है विच इज वेरी पर्सनल टू यू, आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली उसमें ऐड हुए, यू कैन बी इनफॉर्मल डिजिटली ऑन दोज पर्टिकुलर चैनल्स। लेकिन अगर आपने कोई एक ऐसी प्रोफाइल बनाई है, लेट से आपने कोई फेसबुक का पेज बनाया, इंस्टाग्राम का पेज बनाया है, या लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाया, या लिंक्डइन का पेज बनाया, सो देयर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स, अगर आप वहां पर अपने आप को ब्रांड करना चाहते हैं, यू वांट टू बी अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर, तो उसका जो कंटेंट है, उसकी जो नीश है वो बड़ी डिफरेंट होगी। इसकी एक और अच्छी सी एग्जांपल मैं इस तरीके से दूंगा कि लाइक वी ऑल यूज व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप की भी एक और ऐप है विच इज कॉल्ड व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। इफ यू आर लेट्स से डूइंग फ्रीलांसिंग और आप कहते हैं कि मेरा XYZ उमर फ्रीलांसिंग कंसल्टिंग या उमर राइटिंग कंसल्टेंट्स के नाम से कोई एक ब्रांड है मेरा, एंड इफ आई have put up my personal phone number या my personal WhatsApp number on the company page or on the social handles, so उसके ऊपर मैं अपनी सेल्फियां नहीं लगा सकता, या मैं उसके ऊपर कोई अपने जोक और गुड मॉर्निंग और इस तरह की चीजें नहीं डाल सकता, because that is a professional profile. People are not expecting that kind of informal content from you. ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जब हम फ्रीलांसिंग के जर्नी पे जाते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जिस पे लोग आपको जज करते हैं वो आपकी डिजिटल प्रेजेंस है। सो डिजिटल प्रेजेंस का अगर आपने सिर्फ रिफ्लेक्शन करनी है ना, जस्ट गो बैक एंड टेक अ मिनट एंड थिंक कि अगर मैं, आप जितने लोग अभी इस वक्त कॉल में, इफ आई ओपन अप योर पर्सनल प्रोफाइल्स, जो आप लोगों के फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप टिकटॉक वगैरह जो भी यूज करते हैं, सो व्हाट इंप्रेशन विल आई गेट अबाउट यू? डज योर डिजिटल प्रोफाइल looks like, yeah, does your digital profile communicates that you are an amazing content writer and people should reach out to you to learn more about content writing or avail content writing services? Or does it say कि अच्छा आप जो है पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, you are sharing a certain memes and etc etc? तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। दूसरी चीज आपकी इस चीज पे मैटर करती है कि आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस है, कंपनीज नाउअडेज, एंड स्पेशली अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हो, ग्रांट्स के लिए अप्लाई करते हो, फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करते हो, फेलोशिप्स के लिए अप्लाई करते हो, बीइंग अ स्टूडेंट यू हैव ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज, जैसे यूग्रेड का प्रोग्राम होता है, दीज प्लेटफॉर्म्स डू आस्क यू टू सबमिट योर सोशल मीडिया हैंडल्स इन द एप्लीकेशंस। तो वो एम फैंसी होने के लिए नहीं कह रहे होते। They have software, they put your content there and they see कि अच्छा ये बंदा एंटी यूएस तो नहीं है या एंटी कनाडा कंटेंट तो नहीं पोस्ट करता रहता। So they have software, they pick up, they analyze your public data and then they bring out the trends and then they make a personality trait out of it. So इतनी सिंपल चीज नहीं है कि आप कहीं पे कुछ भी पोस्ट कर दें। You have to be very mindful about what you are posting online. पर्सनल ब्रांडिंग का सिर्फ फायदा ये होता है कि इफ यू हैव मेंटेन्ड अ प्रॉपर account on either LinkedIn, Medium or Twitter, you have very high chances of earning interview calls from various digital platforms, जो news platforms होते हैं। That's where you begin your journey. अगर आप एक content creator हैं, you have to get notice first in your local community. वो वाला प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास के लोगों को पता हो कि यार यूटी टेक्सला के अंदर ये 4-5 लोग हैं जिनको कंटेंट राइटिंग करना बहुत आता है। ये हर वक्त इसी चीज में होते हैं। दे ऑलवेज कीप क्रिएटिंग अमेजिंग कंटेंट एंड दे हैव अ ग्रेट नेटवर्क। तो नेटवर्क कैसे बनाते हैं वो हमारा सेकंड सेक्शन है। लेकिन ये एक चीज अंडरस्टैंड करने की बात है, जो हमारे ये मैंने ऊपर टॉप पे प्लेटफॉर्म्स लिखे हैं, ये सिर्फ ब्रांडिंग के लिए है। इनका पर्पस ये नहीं है कि आप यहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज बेचें। इनका पर्पस ये है कि आप यहाँ पर अपने आप को ब्रांड अथॉरिटी एस्टैब्लिश करते हैं कि अगर मैं आपकी लिंक्डइन खोलूं तो योर लिंक्डइन शुड स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट कंटेंट। आपकी लिंक्डइन की फीड के ऊपर जो आपने ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस किया हुआ, उसे पढ़ के मुझे इतनी इतनी नई चीजें सीखने को मिले कि मेरा एक पैसिवली एक इंप्रेशन डेवलप हो जाए कि यार ये तो बंदा जो है ना बहुत ही बेहतरीन है, इसको तो इतनी सारी चीजें पता है, ये इसको इतनी टेक्निकल चीजें भी पता है और ये इतनी अच्छी एजुकेशनल कंटेंट प्रोड्यूस करता है, या इसका ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है अबाउट अ पर्टिकुलर कंटेंट। जैसे अभी मैं कमेंट पढ़ा था, किसी ने शेयर किया हुआ था कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन का कुछ, कि राइटर की जॉब को ऑटोमेट किया जा सकता है। सो देयर आर प्लेटफॉर्म्स अराउंड इट।
जो एआई को यूज करते हुए दे प्रोड्यूस, आप उन्हें कीवर्ड्स दें तो आपको आर्टिकल लिख के दे देते हैं, वो आपको कैप्शंस लिख के दे देते हैं। देयर आर कंटेंट, देयर आर प्लेटफॉर्म्स अराउंड दैट। सो कैन यू राइट अ वेरी इंटरेस्टिंग और थॉटफुल कमेंट, थॉटफुल पीस ऑफ कंटेंट एंड पब्लिश इट ऑन मीडियम, जिसको पढ़ के मुझे ये समझ आए कि अच्छा ये एआई जो है, इज इट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर राइटर्स और नॉट। आप एक आर्टिकल लिखें, उसका टाइटल ये लिखें कि विल एआई किल द राइटिंग जॉब्स और नॉट, या विल एआई एवर रिप्लेस राइटर्स और नॉट, और उसके ऊपर आप कंपैरिजन करें। वी वांट टू हियर व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आप एक रिसर्च करें और उसका एक थॉटफुल आर्टिकल लिखें। अब जब आप इस तरह के 10-20 आर्टिकल लिख लेते हैं तो अब आपके पास दो चीजें अचीव हो रही हैं। एक तो ये अचीव हो रहा है कि चले आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर ली। दूसरी चीज ये अचीव हो रही है कि आपने पोर्टफोलियो के लिए कंटेंट प्रोड्यूस कर लिया, विच यू कैन कोट एज एन एग्जांपल। कि अगर मैं किसी आईटी कंपनी के पास जाता हूं, सॉफ्टवेयर हाउस के पास, और वो लेट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हें जाके कह सकता हूँ कि मैंने ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये 5 आर्टिकल्स लिखे हैं जिसके अंदर मैंने XYZ टॉपिक्स का एनालिसिस किया था। सो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद मी? I would like to contribute and I would like to take care of the content of your particular company. तो ये चीजें इस तरीके से आपको फ्यूचर में हेल्प आउट करती हैं, बट यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ टाइम टू गेट दिस थिंग डन। हमारे पास जो ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स यूजुअली जान छुड़ाने के लिए ना वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा 2 पैराग्राफ वहां से उठाए, एक इधर से उठाए, एक उधर से उठाए, सारों को रिफ्रेश किया, खिचड़ी बना के डाल दी। सो फॉर द सेक ऑफ इट यू कैन से कि ठीक है मैंने कुछ लिखा है, बट क्वालिटी कोई नहीं है। एंड क्वालिटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। फ्रीलांसिंग की दुनिया में क्वालिटी काम अगर आप नहीं करते ना तो आप ना ही करें। सो ये चीज आप याद रखें कि ये जो कंपटीशन इट्स रियली स्ट्रांग। फिर दूसरी चीज ये होती है जिसके बारे में आपने बेतहाशा सुना भी है, वीडियोस भी देखी होंगी, 1000 किस्म की ट्रेनर्स ही बैठे हैं हर वक्त सोशल मीडिया पे बातें कर रहे होते हैं। दैट इज के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? सो उसमें अपवर्क, फाइवर, पीपल पर, और देन देयर आर टन्स ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। सो अगर आपने सिर्फ ये सीखना है कि अच्छा अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, फाइवर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, गिग कैसे बनाते हैं, पोस्ट कैसे करते हैं, प्रपोजल कैसे लिखते हैं, ये बेसिक चीजों के ऊपर बेतहाशा कंटेंट बना हुआ है। हम इसको टच जरूर करेंगे आज की वर्कशॉप के अंदर, लेकिन इससे ज्यादा जो इसके पीछे जिन चीजों पे बात नहीं होती, जो पूरा फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर हम थोड़ी ज्यादा डिस्कशन करेंगे ताकि आपको ओवरऑल बिगर पिक्चर पता हो। सिर्फ एक जनरल परसेप्शन अभी ये बना हुआ है कि अच्छा बस यार फाइवर का अकाउंट बना लो, उस पर एक गिग बना लो, बस उसके बाद तो ऐसे डॉलर गिरने शुरू हो जाएंगे ना हमारी जेब में कि बस मैं क्या बताऊं। सो दैट इज नॉट हाउ इट हैपेंस। मेजॉरिटी लोगों ने वो यूट्यूब पे क्लिक बेट वीडियोस ऐसी बनाई हुई होती हैं, बट दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस बिहाइंड इट। दैट इज व्हाट वी विल कवर इन दिस सेशन। फिर एक और चीज होती है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मेक देयर पर्सनल वेबसाइट्स। पर्सनल वेबसाइट्स का मतलब है कि सिंस आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मैं अपनी एक ब्लॉग प्रोड्यूस कर लेता हूँ। उस ब्लॉग के अंदर आई राइट डेली। तो वो मोस्टली वर्डप्रेस के ऊपर लोग सेटअप करते हैं, विक्स पे करते हैं, एंड सम पीपल यूज नो कोड प्लेटफॉर्म्स लाइक सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आजकल मैंने देखा है पीपल आर डूइंग एंड रनिंग देयर पर्सनल ब्लॉग्स एज वेल। एयरटेबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो लाइक देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल आउटसाइड, लेकिन जो सबसे सेफ ऑप्शन है फॉर दोज पीपल हु डू नॉट नो कोडिंग एट ऑल, मीडियम पे जाएं जिंदगी स्कूल में। सो पहले अगर हम थोड़ी सी बात करें प्रोफेशनल प्रोफाइल्स की, सो जनरली लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी इस तरीके से होती है। इफ यू वांट टू चेक कि अच्छा किस तरह की प्रोफाइल है, हाउ डू इट लुक्स लाइक, मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा उसको भी ब्रीफ कर दूंगा। सो यू हैव अ फेयर आइडिया कि अगर आप एक अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाते हैं तो व्हाट आर सम ऑफ द की एलिमेंट्स दैट यू नीड टू लुक इनटू। अब इसमें आपके पास ये जो चीज है, इट्स लाइक अ कवर फोटो। इसको हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए कि कवर फोटो देखकर पहली परसेप्शन आएगी अच्छा ये बंदा करता क्या। उसके बाद आपकी जो हेडशॉट है, यस वेबफ्लो इज आल्सो पॉपुलर। सो हेडशॉट जो है वो जनरली लाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए एंड इट शुड बी जस्ट योर फेस। ठीक है, आपने ईद का ड्रेस बनाया तो पूरी तस्वीर डालने की जरूरत नहीं है, नोबडी केयर्स अबाउट इट। लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल पिक्चर्स आर ओनली दिस इस तरह की होती हैं। फिर उसके नीचे आपका नाम होता है एंड देन दिस इज अ हेडलाइन। अगर आप हेडलाइन के अंदर कीवर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते, आपकी प्रोफाइल कभी भी लिंक्डइन पे सर्च नहीं होगी। तो मैंने कंटेंट स्पेशलिस्ट का की टैग डाला हुआ है, आप कंटेंट राइटर का डाल सकते हैं, ई बुक राइटर का डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर योर नीश इज। उसको भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या जॉब टाइटल्स होते हैं।
फिर मैं पार्टनरशिप्स का काम कर रहा था, तो मैंने पार्टनरशिप्स मैनेजर भी लिखा है और मेरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री एडटेक की है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं काम करता हूँ. आई बिल्ड सच वेबसाइट्स एंड आई बिल्ड सम सॉल्यूशंस एज वेल. और उसके बाद फिर ये एक और लिंक्डइन ने न्यू फीचर लगाया है कि आप जिन टॉपिक्स पे बात करते हैं आप उन कीवर्ड्स को यहाँ डाल सकते हैं और लिस्ट कर सकते हैं, एंड देन दे स्टार्ट अपीयरिंग इन योर न्यूज़ फीड एज वेल. तो कंटेंट इन्फो एंड देन फॉलोअर्स एंड अदर स्टफ. सो अभी मैं आपको एक लाइव डेमो दिखा दूं, बट बिफोर वी गो इनटू दैट आई वांट टू हाईलाइट व्हाट आर सम ऑफ द सेक्शंस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यूआरएल एक होता है. अब अगर मेरा आप यूआरएल देखें तो माय यूआरएल इज एग्जैक्टली माय नेम, लेकिन जनरली अगर आप अपनी लिंक्डइन का यूआरएल देखें तो उसके एंड में कोई रैंडम नंबर्स लगे हुए होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह करके कोई नंबर लगे होंगे आपके नाम के आगे. सो हाउ डू यू गेट रिड ऑफ दैट? इस चीज को हम कहते हैं पर्सनलाइजिंग माय यूआरएल. सो ये बहुत कम लोगों को पता होती है. इफ यू आर यूजिंग मोबाइल, वहां पे ये ऑप्शन नहीं आता. दिस इज ओनली अवेलेबल व्हेन यू लॉग इन थ्रू अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप. फिर दूसरी चीज आपका अबाउट सेक्शन होता है, जिसके अंदर आपने अपनी बायो लिखनी होती है. एजुकेशन लिस्ट करते हैं. वर्क के अंदर अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप वगैरह का है, यू कैन लिस्ट दैट. एंड देन स्किल्स जनरली आप 50 ऐड कर सकते हैं. आई हाईली रिकमेंड कि ऐड 50 स्किल्स. नहीं है तो सोचें कि मेरी लाइफ के अंदर क्यों 50 स्किल नहीं है. सो यू नीड टू बिल्ड दोस स्किल्स इन यू. फिर इसी तरह अचीवमेंट्स, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, कोई आपने लोकली कुछ यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया, आप उस चीज को यहाँ लिस्ट कर सकते हैं. किसी ऑर्गेनाइजेशन का वॉलंटियर के आप उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं. जैसे आप अभी स्टूडेंट बॉडी का चैप्टर के अंदर कोई एग्जीक्यूटिव या मैनेजरियल रोल में सिलेक्टेड है, आप वो लिस्ट कर सकते हैं. एंड सिमिलरली रिकमेंडेशंस का एक सेक्शन होता है जिसमें आप अपने प्रोफेसर वगैरह से रिकमेंडेशन ले सकते हैं. दैट ऑल थिंग्स हेल्प यू बिल्ड योर पर्सनल प्रोफाइल. और इसके अलावा दूसरी चीज जो लिंक्डइन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, यू कैन एक्चुअली डू फ्रीलांसिंग ऑन द लिंक्डइन एज वेल. This is quite a new thing. LinkedIn का new feature है, but you can do it. Not many people know it, but generally I've seen a lot of people using it professionally. So LinkedIn के ऊपर जॉब कैसे ढूंढी जा सकती है, किस तरह से ढूंढी जा सकती है, तो उसके ऊपर जॉब सर्च कैसे की जाती है, ये मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके पूरा एक क्विक डेमो दे दूंगा ताकि आप लोगों को बेसिक आइडिया हो जाए. एंड देन व्हाट आर सम ऑफ द प्रीरिक्विजिट्स फॉर इट, नेटवर्किंग कैसे की जाती है, और अगर आपको कोई मैसेज वगैरह करे तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट. सो ये तो एक बेसिक है. सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू these demo. उसके बाद फिर हम अगले next tool पे जाते हैं. And meanwhile, if you guys have any questions, please feel free to drop them in the chat box. We will address them in the last. So as you can see, ये मेरी स्क्रीन है, ये मेरा डैशबोर्ड है. यहाँ पे ये टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक ये ऑप्शन लिखा हुआ है, एडिट पब्लिक प्रोफाइल इन यूआरएल. So आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इस तरह का एक पेज सा ओपन हो जाता है. अब यहां पर आपने ये देखें एक छोटा सा पेंसिल का आइकन है, दिस वन. क्लिक ऑन दिस आइकन तो आपके पास ये एकदम ये बॉक्स ओपन हो जाएगा. नाउ यू कैन पर्सनलाइज योर यूआरएल. अगर कोई नंबर्स या रैंडम कोई भी चीजें लिखी आप उन्हें डिलीट करें एंड देन राइट योर एग्जैक्ट नेम, स्पेलिंग्स एंड दैट्स इट. फिर मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है कि वो अपने नाम के आगे ना लिख लेते हैं डाटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट. आप कंटेंट राइटर भी लिख सकते हैं. जैसे आप कह सकते हैं linkedin.com/in/umar कंटेंट राइटर, ऐसे भी लिखते हैं. तो दैट्स परफेक्टली फाइन. इट्स टोटली अप टू यू. लॉट ऑफ क्रिएटिव वेज टू गो अबाउट इट. जब हो जाए इसे सेव करते हैं. नाउ दिस इज योर न्यू यूआरएल जिसको आप यूज कर सकते हैं. उसके बाद फिर अगर हम आगे चले तो आपके पास अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि कौन सी जगह पे यूआरएल. देखें बेटा, जब आप लॉग इन करोगे ना, ये आपका यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लिखा है एडिट पब्लिक प्रोफाइल इन यूआरएल. इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा. ये सिर्फ डेस्कटॉप पे आएगा. अगर आप मोबाइल से लॉग्ड इन है तो नहीं आएगा, ये मैंने पहले ही बताया. और यहाँ पे इस पेंसिल को क्लिक करें तो फिर हो जाएगा. ठीक है. फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव लिंक्डइन प्रोफाइल्स, यू कैन फिक्स योर लिंक्डइन प्रोफाइल लाइक दिस. दिस इज द स्टेप 1 फॉर द पर्सनल ब्रांडिंग. इससे पता चलता है आपने कोई मेहनत की है, कोई एफर्ट डाली है. दूसरी चीज, आपने अगर यहाँ से अपनी कवर फोटो चेंज करनी है, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर एंड देन दिस पेंसिल आइकन. अगर आप इस पे क्लिक करते हो देन इट गिव्स यू ऑप्शंस जहां पर आप बेसिक डिटेल्स ऐड कर सकते हो. यहाँ पे मैंने हेडलाइन डाली है और उसके बाद आपकी करंट पोजीशन अगर है तो आप डालें, नहीं है तो ना डालें. और इसके अंदर यहाँ पर आप चीजें ऐड कर सकते हो. अब मैंने क्या किया हुआ, मैंने यहाँ पर कैलेंडरी का एक बुकिंग लिंक ऐड किया हुआ है. अब इसके साथ देखें मैंने नीचे टेक्स्ट लिखा है बुक अ सेशन और मैंने इसे सेव किया हुआ है. इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मेरी प्रोफाइल के नीचे एक लिंक आ रहा है. अपडेटेड ऐप पे भी
प्रॉब्ली हो सकता है, मैंने देखा नहीं है। सो देखिए मैंने इस लिंक पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक पर्सनलाइज लिंक ओपन हो जाता है जो मैंने लिखा हुआ है। सो नाउ यू कैन क्लिक हियर एंड बुक अ सेशन, बट दीज आर चार्ज सेशंस। तो ये मैंने लिंक्डइन के ऊपर चार्ज सेशन लगाया हुआ, आई यूज अ प्रीमियम सर्विस फॉर दिस, बट इसका फ्री वर्जन भी होता है, यू कैन यूज इट इफ यू वांट। तो ये बेसिकली क्या है कि एक एक्स्ट्रा फीचर है। अब आपने लेट से कोई फाइनल ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जो आप शोकेस करना चाहते हैं, या आपने रेज्यूमे बनाया हुआ है, आप यहाँ रेज्यूमे लिख लें, सी माई रेज्यूमे, हायर मी, इस तरह करके आप कर सकते हो। आपने अगर अपवर्क के फाइवर के ऊपर कोई गिग बनाई हुई, आप लिख सकते हैं हायर मी ऑन फाइवर, टेक्स्ट लिख लें और पीछे अपनी प्रोफाइल का लिंक दे दें, ताकि जब मैं इसको क्लिक करूं तो आपकी फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल का लिंक खुल जाए। सो ये बेसिक चीजें हैं विच यू नीड टू फिक्स इन योर प्रोफाइल। उसके बाद जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पर ये दो ऑप्शंस हैं, एक ओपन टू वर्क है और एक प्रोवाइडिंग सर्विसेज का है। सो दिस इज वेयर यू कैन फ्रीलांस ऑन लिंक्डइन। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये देखिए मेरा एक फ्रीलांसिंग का पूरा पेज खुल जाता है जिसके अंदर मेंशन है कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आई एम प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज, और उसके अंदर आप पोर्टफोलियो अपना ऐड कर सकते हैं, 8 पोर्टफोलियो ऐड किए जा सकते हैं। और अगर आपका क्लाइंट जो है वो लिंक्डइन के ऊपर भी अवेलेबल है तो आप उससे कह सकते हो कि यार मैंने XYZ टाइम में आपके साथ काम किया था, आई वुड बी रियली प्लीज्ड इफ यू कैन लाइक गिव मी अ रिव्यू ऑन दिस। और जिन जिन को आप रिव्यू देते हो उसका स्टेटस यहाँ आ रहा होता है। अब जैसे मैंने एक ये रिव्यू यहाँ भेजा है उमेर को कि यार मैंने आपके साथ काम किया था, सो आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कैन लीव अ रिव्यू ऑन माय लिंक्डइन प्रोफाइल एंड सो ऑन। तो इस तरह करके सो इससे क्या होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है। सो यू कैन यूज दिस लिंक, ये जो आपका लिंक है ये आप किसी को भी दे सकते हैं, या अपने पर्सनल प्रोफाइल या रेज्यूमे या कहीं और अटैच कर सकते हैं कि अगर आपने फ्रीलांसिंग सर्विसेज लेनी है तो आप यहां से ले सकते हैं। सो लिंक्डइन के ऊपर दिस इज वन वे ऑफ फ्रीलांसिंग ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन का फायदा क्या है फ्रीलांसिंग करने का? इसमें कंपटीशन बहुत कम है, बिकॉज नॉट मेनी पीपल नो इट। और लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना जरा मुश्किल काम है, तो बहुत सारे लोग तो वैसे ही नहीं बनाते। तो कम लोग हैं पाकिस्तान में, वैसे ही कम लोग हैं, और इस पे मोस्टली लोग एक्टिव ही नहीं होते, स्पेशली पाकिस्तान से। तो आपका जो कंपटीशन लोकल वाला है ना वो बहुत ही कम है। इट्स वेरी इजी टू गेट नोटिस एंड वेरी इजी टू गेट फीचर्ड। दूसरी चीज ये कि देखें आपके पास एनालिटिक्स है। अब फिर कुछ लोग ये कहते हैं यार हमें क्या जरूरत है फजूल की पोस्टें करने की लिंक्डइन के ऊपर, उसका कोई फायदा तो होता नहीं है। उसका फायदा इस तरीके से होता है कि आप ये देखें कि ये मेरे जो आपको एनालिटिक्स नजर आ रहे हैं, सो देयर आर 1000 प्रोफाइल व्यूज इन लास्ट 7 डेज, और मैंने जो पोस्ट की हैं उसके अंदर कोई 8000 लोगों ने वो पोस्ट देखी है। सो आप सिंपल मैथमेटिक्स इंजीनियर हैं, आप ये देखें कि अगर 8000 लोगों ने देखा है तो अगर मैं उसका 1% भी ले लूं तो तकरीबन 80 लोग तो मुझे मैसेज करेंगे ना, या एटलीस्ट दे विल ट्राई टू एंगेज विद मी। 99% को मैं कह रहा हूँ चूल्हे में जाओ, नहीं मैं तुम लोग इग्नोर करो मुझे, लेकिन 1% कन्वर्जन रेट तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना बेयर मिनिमम के ऊपर। तो होता ये है कि द मोर यू शेयर द कंटेंट ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल, स्पेशली लिंक्डइन, तो यहाँ से स्टार्ट लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देते हैं। लिंक्डइन का एल्गो आपकी प्रोफाइल पिक कर लेता है और फिर आपके ये वाले जो नंबर्स है ना ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब दिस मीन्स कि कोई बंदा लिंक्डइन पे गया है, उसने यहाँ जाके लिखा है कोई कीवर्ड, और वो कीवर्ड जो है उसकी वजह से मेरी प्रोफाइल शो हुई है। तो देयर आर 543 पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जिन्होंने लास्ट 7 डेज के अंदर मेरी प्रोफाइल देखी। एंड इफ आई वांट टू सी वो कौन से 543 लोग हैं या क्या ट्रेंड था, सो यू कैन क्लिक ऑन इट और आपको पता चल जाएगा। तो अब कीवर्ड जिसके ऊपर मैं ज्यादा सर्च हो रहा हूँ, I don't know why I'm being searched on food server, but script writer, game developer, content writer, trainer, इन keywords के ऊपर मैं सर्च हो रहा हूँ। So अगर मैंने मजीद देखना है, I can click on it, तो मुझे पता चल जाएगा कि content writer की कौन सी लिस्टिंग में मैं कहाँ पे आ रहा हूँ। So कोई बंदा आया, उसने content writer लिखा और सर्च किया, तो इसके अंदर somewhere here and there मेरी कहीं प्रोफाइल शो हो रही है, यानी जब उसने उसे मजीद सर्च किया तो। So that means कि 600 लोगों ने सर्च किया मुझे, और ये किस तरह हुआ? क्योंकि 8000 लोगों ने मेरी पोस्टें देखी थी। तो जब कोई बंदा आपका प्रोड्यूस्ड कंटेंट देखता है, पैसिवली उसके माइंड में ये आ जाता है यार इस बंदे से मैंने कभी कोई काम हुआ ना तो इसको मैं बात करूंगा। तो हमेशा लोगों को आपके नाम याद नहीं होते, दे ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू हेल्प देम विद। यानी हम बहुत से लोग हैं उनको मेरा नाम उम्र याद नहीं होता, वो कहते हैं यार वो बुक पब्लिशिंग वाला कोई लड़का था ना उसको सर्च करो, तो वो बुक पब्लिशर लिख के सर्च करते हैं। मेजॉरिटी लोगों ने मेरा फोन नंबर नाम ही बुक पब्लिशर के साथ सेव किया होता है। सो अगर इस चीज को आप ध्यान में रखें, सो दिस इज लाइक जस्ट हाईलाइटिंग दिस थिंग कि हाउ पीपल थिंक, हाउ सिस्टम्स वर्क, एंड हाउ यू कैन पोजीशन योरसेल्फ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। फिर इसमें क्रिएटर मोड होता है, प्लीज मेक श्योर कि क्रिएटर मोड आपका ऑन हो। जब आप क्रिएटर मोड ऑन करते हो देन यू गेट दीज फैंसी आइटम्स। ये जो यहाँ मैंने हैशटैग लगाए हुए क्रिएटर मोड ऑन करने के बाद होता है, ये लिमिटेड फीचर है,
you have to manually turn it on. फिर featured के अंदर आप चीजें डाल सकते हो. So I've put up some of the awards that I have won ताकि एक बेसिक इंप्रेशन पता चले लोगों को क्या है. जो मैंने बायो की बात की थी, बायो ये है. So bio is like how should someone explain you or introduce you. The more detailed it is, the more effort you put in, the more keywords you use here, the LinkedIn algorithm ranks your profile accordingly. अब अगर आप मेरी बायो पढ़े तो बहुत ज्यादा वर्ड कंटेंट, राइटिंग, ट्रेनिंग, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है. सो दैट इज इंटेंशनल. तो दिस इज द लाइक ब्यूटी ऑफ द राइटर के वो अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से किसी भी कंटेंट को ब्रांड कर सकता है. सो दैट इज वन थिंग. दूसरी चीज ये कि जब आपको एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, लेट से आप अगर यूनिवर्सिटी की सोसाइटी में भी हैं और एंड अज्यूमिंग कि आप ये सेशन ऑर्गेनाइज करें, टेक सम स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस सेशन, पुट देम इन द पोर्टफोलियो एंड राइट फ्यू पैराग्राफ्स अराउंड इट. कि मैं आप कहें जी मैं प्रेसिडेंट ऑफ आइस यूईटी टेक्सला चैप्टर हूँ, इस डेट से इस डेट तक मैं था और ड्यूरिंग माय प्रेसिडेंटशिप मैंने ये काम किए, ये इम्पैक्ट क्रिएट किया, इतने स्टूडेंट्स मोबिलाइज किए, एंड दीज आर सम ऑफ द इवेंट हाइलाइट्स. अगर आप प्रेसिडेंट नहीं है, नीचे किसी और पोजीशन पे है, तो आप अपना रोल लिखें कि मैंने कोऑर्डिनेशन की, इतने लोगों को मैंने इकट्ठा किया, मैंने मार्केटिंग करके इतने लोगों को एंगेज किया. सो ऑलवेज ट्राई टू राइट व्हाटएवर यू आर गुड एट. ये बेसिक्स हैं इन सारी चीजों की. सो दीज आर लाइक एक्सपीरियंसेस. फिर इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी को ऐड करते हैं तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में मेंशन किया हुआ है कि मैंने कौन कौन से एरियाज में काम किया, विच सर्टिफिकेट्स आई वन, विच प्रोजेक्ट्स आई मेड, कहाँ मेरी किसकी वजह से मुझे क्या फायदा हुआ, समथिंग लाइक अ पर्सनल स्टेटमेंट. ये बेसिक चीजें होती हैं जो आप ब्रांडिंग के लिए डाल रहे हो. तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये पर्सनल ब्रांडिंग की हैं. इट हेल्प्स यू इन योर फ्रीलांसिंग जर्नी, क्योंकि जब हम नेटवर्क करने जाएंगे तो लोगों को हम ये प्रोफाइल का लिंक देते हैं. सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस कि जब हम ये कर लेते हैं और हम किसी के पास जाते हैं नेटवर्किंग के लिए, तो हम उसे जाके कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम अ कंटेंट, माय नेम इज Umar and I am an alumni of UT Texla. I'm really good at content writing. I see that your company is doing maybe making products in domain A, domain B. My final year project fortunately was on the same topic, and I've done some tremendous research, and you would be really surprised to see that I made in my analysis of this particular industry, the key stats are very alarming, but I have seen that there is a lot of growth for Pakistan. So what is your company focusing on? इस तरह करके हम डिस्कशन शुरू करते हैं. तो वो जब इंप्रेस हो जाता है ना, आपके पास टोटल 60 सेकंड्स होते हैं या 30 सेकंड्स होते हैं अगले से बात करने के लिए. अगर आप उसे बोर कर रहे होंगे ना, वो आपको इग्नोर करके चला जाएगा वहां से. आप बोलते रहेंगे, वो आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा, वो ऐसे ही चल के चला जाएगा. So you have 30 seconds. That is called your elevator pitch. So this is generally for those people who ask, अच्छा ये jobs ढूंढते कैसे हैं? So you're always in your selling mode. You're always reaching out to people. लेकिन आप जब भी किसी से बात करने जाते हैं तो उसके बात करने के लिए आपके हाथ में कोई पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कोई चीजें होनी चाहिए जिसको बेस बना के आप अपनी पिच बनाएं, जैसे मैंने अभी बात की. तो ये एक चीज बेसिक याद रखनी होती है. इसको थोड़ा सा भी हम और डिस्कस करेंगे. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है विच आई वांट टू टॉक अबाउट. अच्छा हाँ, एक चीज इसमें मिस होगी. लेट मी जस्ट क्विकली कवर इट, फिर इस पे आते हैं. लिंक्डइन में जॉब्स कैसे ढूंढते हैं. सो अज्यूमिंग कि आपने ये प्रोफाइल सारी बना ली है एंड इट इज लाइक रियली रियली गुड, फिर आप जाते हैं ये जॉब्स वाले सेक्शन में. ये आपकी मोबाइल ऐप में भी है या आपके उस साइट पे भी है. सो आप यहाँ पे जाओ और जाके लिखो फॉर एग्जांपल मुझे कंटेंट राइटिंग की जॉब चाहिए. तो कंटेंट राइटिंग मैंने लिखा तो मेरे पास ये जॉब्स खुल गई हैं. देयर आर 80 जॉब्स जो कि अभी अवेलेबल हैं. तो मैं कहता हूँ यार इसको फिल्टर डाउन करते हैं. आई एम ओनली लुकिंग फॉर रिमोट जॉब्स. मैंने रिमोट के फिल्टर पे क्लिक कर लिया तो मेरे पास ये वो जॉब्स आ गई हैं जो रिमोट है. आप देखें ट्रिब्यून वाइड कोई कंपनी है और ये इसने इंटर्नशिप ओपन की हुई है और 200 लोगों ने इसमें ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है. तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स लिखी हुई है कि क्या क्या चीजें हैं और आप इसको यहाँ से इजी अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं. तो ये बेसिक आपसे डिटेल मांगता है. उसके बाद कहता है अपना रेज्यूमे डाल दें और उसके बाद वो आपसे 2-3 सवाल पूछता है कि अच्छा आपका क्या एक्सपीरियंस है, और ये सारा कुछ करके आप रिव्यू करते हो एंड देन सबमिट इट. तो दिस इज लाइक सिंपल 4-5 क्लिक्स. तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो. सिमिलरली आप कहते हो नहीं यार मैंने पाकिस्तान में तो जॉब करनी नहीं, मुझे तो यूएसए में करनी है. तो आप यूएस यहाँ से सिलेक्ट कर लें और आपने रिमोट जॉब सिलेक्ट की हुई है तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि रिमोट जॉब्स पार्ट टाइम $5 से $15 पर घंटे के ऊपर मिल रही हैं. सो इस पे इन्होंने डिटेल्स दी हुई है हाउ यू कैन साइन अप फॉर इट. फिर आप कहते हो कि नहीं मैंने ये करनी है, यूएसए में कंटेंट डिजाइन लीड बनना है, तो यहाँ पे आपके पास रिमोट जॉब अवेलेबल है. इफ यू फील कि आप इससे सेटिस्फाइड हो एंड यू फील कि यू आर अ गुड फिट फॉर इट, आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हो. इनके अप्लाई करने का प्रोसेस है, इस पे मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे जॉब एप्लीकेशन पे ले जाता है. मुझे फिर अब यहाँ इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा. सो
either freelancing or either just finding ways to earn through content, this is a gold mine for you, because इतनी मेहनत ये इतनी खौरी कोई भी नहीं करता. So you have to put an effort. So there are like देखें 9,000 जॉब्स हैं, आप इनमें से अगर 1% में भी अप्लाई कर लेना तो जॉब मिल जाएगी आपको, या आपको पेड गिग मिल जाएगी. अब ये मैंने रिमोट क्यों चूज किया है, क्योंकि देखिए फ्रीलांसिंग का पर्पस भी तो यही है ना कि रिमोटली घर बैठ के आराम से पैसे कमाए जाए. आप ऑफिस से जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ रिमोट का फिल्टर लगाएं, जिस कंट्री में दिल करता है आप इसको कर सकते हो. अच्छा, न्यू जॉब्स के नोटिफिकेशन शो होते रहेंगे. न्यू जॉब्स के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन सेट करने का. आई वुड चेक एंड देन आई विल अपडेट यू. आई एम नॉट क्वाइट श्योर, लेकिन इसमें एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है, वो आपको ऑन करना पड़ता है. मुझे देखना पड़ेगा. लेट मी सी. नहीं, इधर अभी फिलहाल तो नहीं. ये रहा, सॉरी ये रहा, कंटेंट राइटिंग इन यूनाइटेड. जब आप इसको ये अलर्ट को ऑन कर देंगे ना, अब आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी. जब भी कोई नई जॉब पोस्ट होगी ना कंटेंट राइटिंग की यूएसए के अंदर रिमोट जॉब, तो आपको अलर्ट आ जाएगी. अलर्ट आपके यहाँ नोटिफिकेशन में आती है. सो इसको आप ऑफ कर दें फिर नहीं आएगी. ईमेल भी आती है आपको. सो अगेन दिस इज लाइक टोटली डिपेंडिंग ऑन यू. सो आई होप कि ये बेसिक एक लोगों को समझ आ गई है कि लिंक्डइन को यूज करते हुए प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, जॉब्स कैसे बनाते हैं. एक और चीज बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट थिंग, कि लिंक्डइन के ऊपर मोस्टली लोग किस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं. मोस्टली दे आर टॉकिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस कि मैंने जॉब शुरू कर दी, आई एम लुकिंग फॉर XYZ एक्सपीरियंसेस. फिर लोग जो है अपना कुछ प्रोड्यूस करते हैं कंटेंट कि किस तरह का है, लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. लेट मी दिस थिंग. सो दिस इज कॉल्ड एन एजुकेशनल पोस्ट. अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं ना, तो यू हैव टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ कंटेंट. अब ये कंटेंट फिजूल सा कंटेंट नहीं है. अब ये प्रोडक्ट मैनेजर है तो उसने उससे रिलेटेड कोई एक डेली लाइफ की केस स्टडी मेंशन की हुई है कि प्राइम एंड प्रोजेक्ट मैनेजर का हाइप साइकिल क्या होता है. सो उसके ऊपर उसने कोई एक रिसर्च उठा के उसके ऊपर कंटेंट पोस्ट किया हुआ है और इसका कंटेंट बहुत अमेजिंग होता है. सो आप इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं. फिर कुछ स्क्रॉलेबल पीडीएफ्स होते हैं, आप वो डाल सकते हैं. इस तरह के रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं. अब ये देखें, ये बंदा नोशन का है. अब इसने इंटरनेट इज फ्री यूनिवर्सिटी, तो उसने यहाँ डिटेल्स दी हुई कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप क्या क्या चीजें फ्री सीख सकते हैं. सो आइडियली आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप कंटेंट की नीश में अपने आप को ब्रांड करना चाहते हैं, यू शुड बी प्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट इन नीश ऑफ कंटेंट. तो इस तरह की डेली की आपने 2 पोस्ट करनी है. डू दैट फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स एंड देन टेल मी कि यार मेरी प्रोफाइल अभी भी रैंक नहीं कर रही. सो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है. मेजॉरिटी लोग कंसिस्टेंट नहीं होते, ये बस मेजर मसला होता है. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने आपके लिए चूज किया हुआ है. So the next topic is basically medium. So medium is more like an, जैसे पुराने जमाने में लोग डायरी लिखा करते थे ना, so medium is like a public diary. पूरी दुनिया के टॉप थिंकर्स, फिलोसोफर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सीईओज, जितने टॉप के लोग हैं सारे के सारे मीडियम पे जाके लिखते हैं. और मीडियम पे सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स लिखते हैं. और अगर आपको रीडिंग का शौक है, इफ यू जस्ट वांट टू लर्न अबाउट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, क्योंकि फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग अ स्किल. मैंने पहला स्टेज बताया था लर्निंग स्किल है. तो लर्निंग आपने कहां से करनी है? लर्निंग आपने मीडियम से जाके करनी है. medium.com खोलें, वहां कंटेंट पे जाके क्लिक करें एंड देन रीड एटलीस्ट 2 to 5 आर्टिकल्स डेली. डू दिस फॉर 6 months. 6 months नहीं करते चलें 3 महीने तो करें. इतनी आपको नॉलेज आ जाएगी, इतने आपके आइडियाज आ जाएंगे एंड देन योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली गो इन द क्रिएशन मोड. जब आप यहाँ पे 4 आर्टिकल पढ़ेंगे ना, आपके जहन में 2 पैराग्राफ तो आ जाएंगे जो आप उसी टाइम लिंक्डइन पे डाल सकते हैं. तो दिस इज जनरली रिलेशन बिटवीन लिंक्डइन एंड मीडियम, कि मीडियम से सीखें, लिंक्डइन पे पोस्ट करें और उसके बाद ब्रांडिंग करें एंड देन नेटवर्क विद देम. सो इस तरीके से आप देख सकते हैं. अच्छा, सो फॉर दोज हु वांट टू गो फॉर प्रेयर ब्रेक दे कैन. द रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल, तो आप बाद में उसको फिर कवर कर लीजिएगा. इसके बाद अगर आप मीडियम की न्यूज फीड के ऊपर आप जाते हो, तो न्यूज फीड के ऊपर इस तरीके से आर्टिकल्स आ रहे होते हैं. सो आप यहाँ पर भी कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. मीडियम और लिंक्डइन न्यूज फीड में बेसिक डिफरेंस है. लिंक्डइन की न्यूज फीड शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट के लिए ऑप्टिमाइज्ड है. मीडियम की फीड लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट के लिए ऑप्टिमाइज्ड है. लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मेजॉरिटी आर्टिकल्स 1000 वर्ड या उससे ज्यादा के होते हैं. 1000, 2000, 3000, 4000 वर्ड के आर्टिकल्स होते हैं. प्रॉपर रिसर्च बेस्ड डिटेल्ड कंटेंट होता है. जो लिंक्डइन का कंटेंट होता है, इट्स लाइक अ बाइट साइज कंटेंट, कि आपने फौरन पढ़ा, स्क्रॉल किया, फौरन पढ़ा, स्क्रॉल किया, फौरन पढ़ा, स्क्रॉल किया. ये जो मीडियम है, दिस इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर रीडिंग. पीपल कम टू मीडियम टू रीड एंड लर्न एंड डिस्कस.
Ideally, you should post daily, 2 posts per day. That is the basic, and you should do it for at least 2 months. अगर आप डेली नहीं कर सकते, आप एक दिन बैठ के पोस्ट बना लें और से कोई स्केजुलिंग टूल लेके उस पर डाल दें. That also works. अगर आपने वैसे जान छुड़ानी है तो कैनवा से वैसे स्केजुलिंग हो जाती है. सो सिमिलरली इफ यू क्लिक ऑन द न्यू स्टोरी का बटन, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये जो पेंसिल सी बनी हुई है, इफ यू क्लिक हियर तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होता है. आप यहाँ पे टाइटल लिखें, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखें, एंड देन दीज आर द ऑप्शंस दैट यू कैन ऐड. आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, इमेज सर्च करके ऐड कर सकते हैं, तस्वीरें ऐड कर सकते हैं, कोई कोड ऐड कर सकते हैं. सो दीज आर बेसिक थिंग्स. एक बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, आप इस पे डालें एंड व्हेन यू आर डन जस्ट क्लिक ऑन द वर्ड पब्लिश. आपका ब्लॉग ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा. मीडियम का फायदा ये, इट इज लाइक योर पर्सनल वेबसाइट. क्या आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, आपकी डोमेन सिविल की है, आपको कुछ भी नहीं पता, ओके सो आई विल गेट बैक टू दिस. सो आपको भी बेसिक चीजें नहीं पता, आपको कोडिंग नहीं आती, यू कैन नॉट मेक योर ओन वेबसाइट, तो मीडियम पे जाएं. दिस इज योर पर्सनल वेबसाइट. कुछ भी नहीं करना, जीरो नॉलेज ऑफ कोडिंग, जस्ट गो एंड राइट. और जो लिंक आएगा उसे आप अपने प्रोफाइल पे शेयर कर लें. फिर इसी तरह किसी एक क्वेश्चन अभी आया है कि कैन वी कॉपी पेस्ट अ पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम मीडियम एंड पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन. यस यू कैन, बट उस पैराग्राफ के साथ देयर नीड्स टू बी 2 more paragraphs which explain your opinion. Can we use affiliate links in Medium or LinkedIn post? Yes you can, लेकिन don't make it look like a sales kind of thing. It should be educational kind of thing. जो सेल्स फनल होती है ना, उसमें टॉप के ऊपर जो फनल पे आती है वो अवेयरनेस आती है. तो हमेशा कोशिश करें कि आपका कंटेंट शक्ल से अवेयरनेस वाला लगना चाहिए. बीच में बेशक आप कुछ और पोस्ट करते रहें. Some people earn by posting blogs on medium.com. अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है. एफिलिएट मार्केटिंग में 2-3 चीजें होती हैं. एक ये होती है कि आप अगर फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया है, आप अगर ये काम करके अपने लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, nobody is going to pay you for it. This is just for personal branding. लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं, वो आपको कहती हैं कि यार लेट्स से मैं ये कैमरे बेचती हूँ, तो तुम एक अपनी मीडियम के ऊपर जाकर ना कैमरे की ब्लॉग लिखो और उसके अंदर मेरे कैमरे को रिव्यू करो. और ये बेसिक आउटलाइंस है. बाकी कंटेंट लिखना भी तुमने, तस्वीरें भी खुद बनानी है, पोस्ट भी तुमने खुद करना है. जब हो जाए तो मुझे लिंक दे देना. तो एवरी 3 और 4 वीक्स के बाद हमारा कोई पेमेंट साइकिल होगा, तो इतने लिंक्स तुम दोगे तो इसके अगेंस्ट इतनी पेमेंट मिलेगी. वो कंपनी आपको पे करती है. मीडियम आपको पे नहीं करता, लिंक्डइन आपको कंटेंट पे प्रोड्यूस करने का पे नहीं करता. बट यू हैव टू फाइंड कंपनीज हु आर विलिंग टू पे फॉर योर कंटेंट. दिस इज जनरली लाइक हाउ द थिंग्स गो अबाउट. So yes, you are not required to make a sales pitch. आपने सिर्फ एजुकेशनल पिच लिखनी है. फिर इसी तरीके से जब कोई आर्टिकल पब्लिश होता है तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, कि ये टाइटल होता है, ये नीचे इसके अंदर आप हाइपर लिंक्स डाल दें. आप यहाँ पर अपना वो सेल्स वाला जो भी एफिलिएट लिंक है वो यहाँ हाइपर लिंक कर दें, और नीचे इट शुड लुक लाइक अ स्टोरी. एजुकेशनल कंटेंट होना चाहिए बाय नेचर. आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, उसके नीचे अपनी बायो होनी चाहिए. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ठीक है. सो इसके बाद हमारे पास आगे अगर हम चलें, what happened? Am I still in the call? Okay, so let's just quickly check. Okay, fine. I am in the call. अच्छा, उसके बाद फिर देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस के हमारे पास राइटिंग जॉब्स किस तरह की होती हैं. सो राइटिंग जॉब्स में आपके पास एक चीज होती है विच यू कॉल्ड कॉपी राइटिंग. सो कॉपी राइटिंग का मतलब ये होता है कि इफ यू आर समवन हु कैन राइट ग्रेट सेल्स पिच. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास लेट्स से ये कोई माइक है, सो दिस इज अ रोड्स माइक. ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यार अगर मैंने इसका कॉपी राइटर हूँ तो मैं कहूँगा दिस इज अ वेरी प्रिसाइज 2.5 inch रोड माइक which has a elegant black color. It's very portable and it is very, इस तरह की जो सेल्स टाइप की पिच होती है ना, आप वो अगर लिखने में बहुत एक्सपर्ट है ना तो आप कॉपी राइटर है. कॉपी राइटिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो आपके पास होना चाहिए वो प्रेसी राइटिंग. अगर आपकी अच्छी है ना तो आप कॉपी राइटर बहुत अच्छे बन जाते हैं. प्रेसी राइटिंग इज समथिंग दैट वी लर्नड इन स्कूल 8th-9th क्लास में. वो एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देते और कहते थे बस इसे एक लाइन में या एक सेंटेंस में पूरा करें. वो दरिया को कूजे में बंद करने वाली चीज नहीं होती. सो कॉपी राइटर्स आर वेरी गुड एट दैट. और जैसे एड की सेल्स पिच लिखनी होती है,
ब्रांड्स की टैगलाइन लिखनी होती है, एड्स का स्क्रिप्ट लिखना होता है, ये सारा कॉपी राइटिंग में आता है। एडिटिंग दो तरह की होती है। एडिटिंग में आप इस तरीके से काम कर सकते हो कि या तो आप कंटेंट को पढ़ के उसकी बेसिक एडिटिंग करते हो, लाइक जैसे क्रिएटिव कंटेंट होता है, बुक्स की एडिटिंग होती है, आर्टिकल्स की एडिटिंग होती है, थीसिस की एडिटिंग होती है, वो बेसिक एक चीज है। प्रूफ रीडिंग इज लाइक कि अगर कोई कंटेंट लिखा हुआ है आप उसे रीड करते हैं एंड यू पिक आउट टाइपोस, क्योंकि अगर आपने खुद लिखा है आप अपना कंटेंट खुद प्रूफ नहीं कर सकते, देयर नीड्स टू बी अ थर्ड पर्सन हु डू इट। तो लोग इसके भी हायर करते हैं लोगों को ज्यादा, ये बुक रीडिंग और क्रिएटिव बुक पब्लिशिंग वाली साइड पे बहुत कॉमन है। कंटेंट राइटिंग इज लाइक द मोस्ट कॉमन थिंग, जो बहुत ज्यादा है। मार्केट रेट इज जनरली लाइक 0.5 to 0.5 रुपीज पर वर्ड टू गोज अप टू 2 or 3 and sometimes 5 रुपीज पर वर्ड एज वेल। तो डिपेंड करता है आप किस तरह का कंटेंट किस क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं। तो कंटेंट राइटिंग में ये होता है आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और आपको आउटलाइन दे दी जाती है, आपने उसके अराउंड 400-500 वर्ड लिखने होते हैं। तो इसमें मेजॉरिटी लोग कंटेंट प्लेजराइज कर रहे होते हैं, इधर से कॉपी किया, उधर से पेस्ट किया, उधर से रीफ्रेज किया और डाल दिया। गोस्ट राइटिंग जनरली एक डिस्करेज किया जाता है। गोस्ट राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी के नाम के ऊपर लिख रहे हो, यानी मैं कहता हूँ किताब मैंने लिखनी है, मेरे से तुम पैसे ले लो, लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं छापूंगा, मैं अपने नाम से छापूंगा। दिस इज गोस्ट राइटिंग। Yes, you can buy Grammarly Pro for proofreading. It's a good tool if you want to do it. It's perfectly fine. फिर ग्रांट राइटिंग एक बड़ी इंटरेस्टिंग डोमेन है। ग्रांट राइटिंग में ये होता है कि अगर आप जाके गूगल पे लिखें ग्रांट्स फॉर पाकिस्तान या ग्रांट्स फॉर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इस तरह करके सर्च करें तो देर आर डोनर एजेंसीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हु गिव यू $5,000, $1,000, $500, $1,00,000, $5,00,000, $1,000,000 डिपेंडिंग ऑन द आइडिया दैट यू हैव। अब वो आइडिया जो होता है वो ये भी हो सकता है कि यार मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर ट्री प्लांटेशन ड्राइव कराऊंगा, तो ये जीरो कार्बन या एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज की जो ग्रांट्स है वो इसके ऊपर फंड करती हैं आपको। फिर कोई कहे यार मैं रिसाइकलिंग अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा सेटअप बनाऊंगा, सो वो फिर एक जरा डिफरेंट डोमेन में चली जाती है, वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की साइड चली जाती है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है उसके क्वेश्चंस बहुत एक्सटेंसिव होते हैं। So, अगर आपका बहुत क्रिटिकल माइंड है एंड यू आर अ वेरी गुड प्लानर तो आप ग्रांट राइटिंग की तरफ जा सकते हैं। इसकी लोकली भी बहुत हाई पेड जॉब्स होती हैं। एंट्री लेवल पे जॉब्स जो स्टार्ट होती हैं 60-70 हज़ार रुपए महीने से होती हैं एंड इट गोज अप टू 2-2.5 लाख रुपए तक भी जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। ग्रांट राइटर्स मेजॉरिटी कंपनीज को चाहिए होते हैं। फिर आप राइटिंग की ट्यूशंस दे सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे आप ट्यूशनिंग कर सकते हैं, करियर कोचिंग कर सकते हैं लोगों की। क्रिएटिव राइटिंग इज लाइक बुक राइटिंग, ड्रामा राइटिंग, पोइट्री राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग, वो ये चीजें उसमें आ जाती हैं। अगर आप क्रिएटिव साइड पे तो आप उधर जा सकते हैं। थोड़ी नीश है ये, लेकिन है, लोग करते हैं ये भी। टेक्निकल राइटिंग इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड, कि अच्छा आपने किसी कंपनी, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल अगेन लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, अब ये रोड का माइक है तो इसके अंदर इसकी टेक्निकल स्पेक्स क्या है, इसमें कौन सी चिप लगी हुई है, ये वाली जो पोर्ट है इसको क्या कहते हैं, कितने वोल्टेज पे चलता है, इसका अगर मुझे प्रोडक्ट मैनुअल बनाना है तो वो टेक्निकल रिपोर्ट राइटर ही बनाता है। तो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, डिपेंडिंग ऑन आपके पास वो स्किल सेट है कि नहीं। फिर इस तरह बिजनेस राइटिंग जो होती है, बिजनेस प्लान राइटिंग, ये जरा बिजनेस के जो ग्रेड्स होते हैं जिनको मार्केटिंग प्लान बनाना, बिजनेस प्लान बनाना, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग वगैरह करना आती है, वो ये चीजें उस तरफ जाती हैं। तो बिजनेस राइटिंग और ग्रांट राइटिंग प्रीटी मच सेम होती है, आप उसको देख सकते हो। फिर इसी तरह मार्केटिंग जॉब्स जो हैं ये आपने बहुत ज्यादा देखी होंगी, एसईओ राइटर, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये जो नाम लिखे हुए ना, ये वो तमाम चीजें हैं जिसके लिए लोग कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं। लेकिन आपके पास कंटेंट राइटिंग के साथ थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, कि एसईओ होती कैसे है। अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख लें, इन द एंड आपने करनी राइटिंग ही है। अब ईमेल ऑटोमेशन है तो उसमें आपने न्यूज़लेटर लिखने हैं, तो ईमेल ऑटोमेशन जिस टूल पे होती है आपको सिर्फ थोड़ा सा अपस्किल करना है अपने आप को, तो आप न्यूज़लेटर राइटर भी बन सकते हैं। कंपनियां न्यूज़लेटर लिखने और भेजने के लिए भी राइटर्स को हायर करती हैं। इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग तो बहुत ही कॉमन है, 10-15 हज़ार रुपए हर ब्रांड दे रहा होता है, यार तुम मेरे ब्रांड का सारा कंटेंट मैनेज करो, सोचो भी तुम, डिजाइन भी तुम करो, पब्लिश भी तुम करो, बस मेरे से महीने के पैसे ले लिया करो। सो यू सी देयर आर लॉट ऑफ एरियाज जहां पे कंटेंट एक्सटेंड होके जाता है। अब आप इसे इस तरीके से सोचें, आपके यार मैं तो सिविल इंजीनियर हूं, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मुझे क्या लेना देना इनसे। आप ये देखें कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आप एक सिविल इंजीनियरिंग फर्म के पास जाते हैं तो वो तो ऑफलाइन चलती है। आप उसने अपने बॉस को जाके ये कह सकते, सर मुझे सिविल इंजीनियरिंग तो आती है, लेकिन मैं आपका वेबसाइट का प्रपोजल भी बना सकता हूँ, आपके लिए प्रपोजल राइटिंग कर सकता हूँ, मैं आपके लिए ग्रांट राइटिंग कर सकता हूँ, मैं आपके लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकता हूँ, मैं आपका ईमेल न्यूज़लेटर ऑटोमेट करके दे सकता हूँ।
फिर वो इंटरेस्टेड हो जाएगा, यार ये मैं सिविल इंजीनियर जो एम ही हायर कर रहा हूँ, ये तो एक और बंदा हायर करना पड़ता है, तो अगर ये मुझे उसी प्राइस में दो चीजें एक जगह पे मिल रही हैं तो मैं तो इसको लाजमी हायर करूँ. सो यू कैन गेट जॉब्स इन योर सेम फील्ड बाय मर्जिंग डिफरेंट स्किल्स. ये अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन क्या कर रहा है. कुछ लोग वीडियोग्राफी में अच्छे होते हैं तो वो जाके अपनी कंपनी को कहें, यार मैं आपको प्रोमो वीडियोस भी बना के दे सकता हूँ, मेरा आप कंटेंट वाली जेडी भी मेरे पास डालें. आई वुड लव टू वर्क इन दैट वर्टिकल एज वेल. तो कंपनियों ने ये देखना होता है हमारे पैसे कहाँ से बच रहे हैं. इसी तरीके से अगर मैं इसे लिस्ट डाउन करूं तो या आप पैसे कमाते हो कंटेंट में रहते हुए एज अ रॉयल्टी ऑन सेल, यानी आइदर यू राइट बुक राइट एंड यू पब्लिश और उसके बाद जो कंटेंट बिकता है तो उससे आपको रॉयल्टी आती है. एक ये मोड है, ये ट्रेडिशनल मोड था, बहुत पुराना है, इट डजंट वर्क, नॉट रिकमेंडेड. दूसरा फ्रीलांस राइटिंग है, इसमें इंस्टेंट मनी आती है. रॉयल्टीज आपके लिए तब सूटेबल होती है जब आप थोड़े से इन्फ्लुएंसर टाइप हो एंड यू हैव अ कम्युनिटी जिसका कंफर्म हो कि ये कंटिन्यूस खरीदती है, मुझे फॉलो करती है, डाई हार्ड फॉलोअर्स है मेरे, तब आप रॉयल्टी वाले मोड पे जाते हो. बेसिकली व्हेन यू आर स्टार्टिंग तो यू स्टार्ट विद फ्रीलांस राइटिंग जिसमें आप मैगजीन्स को लिखते हैं, न्यूज़पेपर्स को लिखते हैं, बिजनेसेस को लिखते हैं, आर्टिकल लिख के देते हैं और वो आपको पर पीस पे कर रहे होते हैं. अब इट डिपेंड्स कि किस कंपनी को कर रहे हैं, किस क्लाइंट को कर रहे हैं, तो उसमें रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं. एक और ऑप्शन ही होता है, आप बिजनेस शुरू कर देते हैं, कंसल्टेंसी स्टार्ट कर देते हैं, बूट कैंप्स कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, ऑल दोस थिंग्स, ट्यूशंस देते हैं. बुक पब्लिशिंग में अगर आप वैसे जाएं तो द बेसिक थिंग दैट यू नीड इज कि आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट होना चाहिए, बुक कवर होना चाहिए, यू शुड नो कि अच्छा ट्रेडिशनल पब्लिशिंग क्या है, सेल्फ पब्लिशिंग क्या है, एंड देन यू पब्लिश द बुक एंड देन फिर मार्केटिंग करके जो सेल्स होती है उससे फिर रॉयल्टी आती है एंड देन द साइकिल कंटिन्यूज. तो दिस इज जस्ट वन थिंग. हम सेकंड पर सेक्शन पे आए तो वी विल टॉक अबाउट कम्युनिटीज. कम्युनिटीज का बेसिक फोकस ये होता है कि यू शुड फाइंड वर्क और यू शुड बिल्ड योर वर्थ, यानी अपनी वैल्यू बनाना. हम इन दो चीजों के लिए कम्युनिटी के पास जाते हैं. इस वक्त आप जो आईस कम्युनिटी का जो चैप्टर है उसमें आप अपनी वर्थ बिल्ड करने के लिए आए, यू वांट टू गेट नोटिस, यू वांट टू लर्न. लेकिन जब आप यहां से निकलेंगे यूनिवर्सिटी से, फिर आप जिस कम्युनिटी में जाएंगे आपका फोकस ये होगा यार मुझे वर्क मिले. सिमिलरली स्टूडेंट कम्युनिटीज जो होती हैं उसमें मेन फोकस ये होता है कि आप इधर लर्निंग और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं. क्योंकि अगर आप कोई एक वर्कशॉप करा रहे हैं, कोई इवेंट करा रहे हैं, वो फेल हो जाए, कोई आके आपसे पैसे नहीं मांगता कि यार ये इसमें इतने बंदे तुमने कहे थे, इतने बंदे क्यों नहीं आए, या इसने इतने लाख रुपए इस इवेंट ने क्यों नहीं जनरेट किए. नोबडी आस्क्स दीस क्वेश्चंस फ्रॉम यू. सो दैट मींस इट इज ओके फॉर यू टू फेल एंड इट इज ओके फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट. It helps you understand what works and what doesn't work. So student communities is like a sandbox for experimentation of ideas. जितने ज्यादा आइडियाज आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने इस टेन्योर के अंदर जो थोड़ा सा आपको मिला है, द हेल्पफुल इट इज फॉर यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ. क्योंकि ये मिस्टेक्स आप प्रोफेशनल लाइफ में फिर दोबारा नहीं करेंगे. प्रोफेशनल लाइफ में आपकी उल्टी सीधी चीज करें कंपनियां निकाल देती हैं आपको, क्योंकि देयर इज अ लॉट एट स्टेक. फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहां पे शोकेसिंग होती है. अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि वो क्या ऐसी एग्जांपल्स हैं. कुछ डोमेन स्पेसिफिक भी होते हैं जहां पर आप डिस्कवरी करते हैं टैलेंट की या ट्रेंड्स वगैरह देख रहे होते हैं. अब ये 1 2 3 4 ये जो मैंने आपको डिफरेंट बताए हैं, ओके थैंक यू. सो ये जो मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं, इसमें अब हम देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं. अब इसमें एक प्लेटफॉर्म है विच इज कॉल्ड क्रिएटिव मॉर्निंग्स. सो आप अगर जाएं वेबसाइट पे जाके लिखें creativemornings.com, so you will find like lot of opportunities जिसके अंदर आप घर पे बैठ के रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं उन ऑनलाइन इवेंट्स में, एंड यू कैन बिल्ड योर ग्लोबल नेटवर्क. और उस नेटवर्क से आपको फ्रीलांस जॉब्स भी आती हैं, आपको पेड जॉब्स भी आती हैं, रिमोट जॉब्स भी आती हैं. अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का चैप्टर है और एक गूगल का चैप्टर है. अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते, यू कैन गो ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स एंड साइन अप टू ओपन अ चैप्टर योरसेल्फ. सिमिलरली ब्रिटिश काउंसिल के पास ये जो आइकन है, दिस इज फॉर ब्रिटिश काउंसिल. ब्रिटिश काउंसिल का अगर आप पेज फॉलो करें या न्यूज़लेटर या इस तरह की उनकी चीजें सब्सक्राइब करें, दे हैव लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यूथ एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सिमिलरली आपने अगर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अंदर, तो अपॉर्चुनिटी सर्कल्स की तरफ आप जा सकते हो. ये वेबसाइट है, अ फ्रेंड ऑफ माइन रन्स इट, अमेजिंग वेबसाइट. तो इनके इनके लोकल चैप्टर्स भी हैं, इनकी बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन भी होती है, एंड देन every year they enable lot of people from Pakistan to go outside on international trips. कुछ scholarships पे जा रहे होते हैं, कुछ fellowships पे जा रहे होते हैं. So there is lot of happening in that particular platform. तो अगर आप उस एंगल से देखना चाहते हो तो this is something that you should definitely explore. फिर अगर आप UN की बॉडीज के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, यूनेस्को की जो है, यूनाइटेड नेशंस की, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है यूथ कोलैब का.
So just go on the website and write Youth Collab. So इसका जो पाकिस्तान का चैप्टर है, that is something which I lead. तो इसके थ्रू I was able to travel to 3 different countries. मैं वियतनाम गया, मैं चाइना गया, मैं थाईलैंड गया. वहां जाके मैंने इंटरनेशनल इवेंट्स में बोला है, because I was a part of this network. तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं. अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, इंटरनेशनल नेटवर्क बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग के अंदर बेसिक चीजें ये बहुत काउंट करती हैं. कि जब भी कोई क्लाइंट आएगा तो अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में आइकन्स होंगे, इनकी अपॉर्चुनिटीज आपने टैप इन की होंगी, अपना टाइम इन्वेस्ट किया होगा, तो यू वुड हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग दैट गिग और जॉब और एनीथिंग दैट यू डिजायर as compared to someone who just has a simple degree of a university and nothing else. So it is fine and it is recommended that you score high GPAs and graduate from the university, and not just score high GPAs, you should have very strong conceptual understanding. जो आजकल की प्रोफेशनल लाइफ है वो रट्टे पे नहीं चलती. यूनिवर्सिटी में रट्टा मार के शायद ग्रेड आ जाए, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आता. सो यू नीड टू हैव दैट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. उसके साथ अगर आपका टाई हो जाए ना, यानी थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि एक जॉब है, एक सीट है, आपका भी वही पोर्टफोलियो है, एक और बंदा है उसका भी वही पोर्टफोलियो. लेकिन अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा पर्क्स है ना, लाइक यू हैव सम इंटरनेशनल एक्सपोजर, आपने कुछ प्रोग्राम्स लीड किए हुए हैं, कुछ आपके पास एमिनेंट स्टूडेंट क्लब की एफिलिएशंस हैं और उनके साथ आपने लीड रोल में कुछ इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो दैट मीन्स अ लॉट. तो आप सिलेक्ट होंगे या आप प्रायोरिटाइज होंगे, या मे बी यू माइट बी एबल टू गेट hired and then also get promotions faster. It all comes down to how much value can you deliver. Similarly, अगर आपको entrepreneurship का शौक है तो आप startup grind का चैप्टर एक्सप्लोर कर सकते हो, पाशा का चैप्टर एक्सप्लोर कर सकते हो. They have lot of opportunities for the skill building, लेकिन ये टेक की साइड पे. And similarly, if some of you have the desire to learn the Web3 skills, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और इन कॉमन भी हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट होगी, UI UX, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये बड़े टेक्निकल स्किल्स हैं. अगर आप ये टेक्निकल स्किल्स सीख कर एक ऑल्टरनेट करियर शिफ्ट की तरफ जाना चाहते हैं, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग करियर्स जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. इनका तकरीबन 6 से 9 महीने का प्रोग्राम होता है. एवरीथिंग इज डिलीवर्ड ऑनलाइन. बट इनका फायदा यह है कि दे नॉट ओनली टीच यू बट दे ऑल्सो इंश्योर द प्लेसमेंट. तो हमारे पास अभी भी जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जो हमारे ग्रेजुएट्स निकले, उनमें से लाइक 30-40% हैव लैंडेड द जॉब्स ऑफ मोर देन 50,000 रुपीज पर मंथ. तो इट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट योर करियर, बट इट डिपेंड्स कि आप किस तरफ जाना चाहते हो. इनका ज्यादा फोकस टेक साइड पे है. तो अगर तो लाइक आप सिविल, आप कहते हो यार मैं गलत आके फंस गया हूँ सिविल में, मुझे कुछ और करना चाहिए था, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर. पेमेंट विथड्रॉल के लिए लाइक देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. इस पे अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं थोड़ा आगे आके. हमारा जो Q&A का सेक्शन है ना, इसमें आई विल एड्रेस दैट. अच्छा, फिर एक और चीज मैंने बताई थी आपको, डोमेन स्पेसिफिक कम्युनिटीज होती हैं. तो फाइवर पाकिस्तान की एक कम्युनिटी है, ग्लग की कम्युनिटी है, ड्रिबल की है, फ्लटर की है, लिंक्डइन की है. सो दीज आर लाइक सम ऑफ द कम्युनिटीज विच यू कैन कनेक्ट. तो ड्रिबल के ऊपर मुझे इसलिए याद है, आई वाज अ पार्ट, आई ऑर्गेनाइज्ड अ ड्रिबल चैप्टर इन पाकिस्तान. तो आपके एरिया में अगर ड्रिबल का चैप्टर नहीं है, यू कैन गो टू द ड्रिबल वेबसाइट एंड साइन अप फॉर अ चैप्टर. तो ये ज्यादा उनके लिए जो UI UX डिजाइन वाली साइड में है. फाइवर का लोकल चैप्टर है, आप इनको फाइंड कर सकते हो, सोशल मीडिया के ऊपर है, इनका पेज भी है, ग्रुप भी है, ज्वाइन करें, वहां पे नेटवर्क करें लोगों के साथ. सिमिलरली वुमेन जो भी अभी इस वक्त कॉल के अंदर है, वो पाकिस्तान वुमेन इन कंप्यूटिंग के चैप्टर को जरूर फॉलो करें. दे हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तानी वुमेन. और जनरली अगर आपने कोई स्किल सीखने हैं तो आप लिंक्डइन को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तानकाश का भी एक प्लेटफॉर्म सा है, बट उनके कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और पेड होते हैं. डिजिटल स्किल्स के ऊपर फ्री प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं. तो इफ यू जस्ट वांट टू गेट स्टार्टेड ऑन द डिजिटल स्किल्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल बिल्ड करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के लिए, तो दीज आर सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स व्हिच यू कैन टैप इनटू. सो अगर जस्ट समराइज करूं मैं, तो पाकिस्तान स्टार्टअप्स का फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पे बहुत अच्छी डिस्कशंस होती हैं. इफ यू फॉलो दैट कन्वर्सेशन तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज्यादा हो रही होती हैं. ट्राई टू फॉलो द न्यूज प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया पर टेक इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर लें. आपको इन कॉन्फ्रेंसेस को वर्चुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन पर्सन भी कर सकते हैं. आई रिकमेंड कि इन पर्सन करें. And whenever you go to these conference, try to learn about the companies that are exhibiting there. उनके स्टॉल्स लगे होते हैं, उनसे जाके बात करें. मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई ना कोई एक ऐसी कंपनी मिल जाएगी जिसके साथ आपकी सिनर्जी बनती है, एंड देन यू कैन गेट हायर्ड ऑन द स्पॉट. अगर हायर नहीं भी होते, इंटरव्यू की कॉल उसी टाइम मिल जाती है आपको. आप उनका कार्ड लेके हैं, उनको ईमेल्स लिखें. ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशन विद देम. क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ना नेटवर्किंग की, कि अब हमने स्किल सीख लिया, अगला स्टेप क्या था? नेटवर्किंग. ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ, ये नेटवर्किंग के लिए,
कि वेयर कैन यू गो टू बिल्ड एंड फाइंड योर नेटवर्क। तो टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में आप जा सकते हो, टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसर्स को वैसे फॉलो कर सकते हो, उनकी पोस्ट पे मीनिंगफुली एंगेज करें। कोवर्किंग स्पेसेस अगर आपके किसी एरिया के आसपास हैं तो उधर जाके बैठे, वहां पे कंपनीज आई होती हैं, इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन सेंटर्स हैं, उनका यूनिवर्सिटी ट्रिप ऑर्गेनाइज करें। जैसे एनआईसी इस्लामाबाद जो है उसका आई एम अ पार्ट ऑफ इट। इफ यू वांट टू organize industrial trip to that particular institute, I can talk to them and I can arrange that for you. So it happens, जब आप वहां जाते हो, जाके कंपनीज में देखते हो, तो आप जैसे ही स्टूडेंट्स होते हैं जो वहां बैठ के अपनी कंपनीज बना के रन कर रहे होते हैं। So it gives you motivation to actually do something about your life. तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में आप वहाँ कंपनीज के साथ सारी टीम बैठी होती है, आप उनसे नेटवर्क कर सकते हो, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एंड प्रॉब्ली यू कैन आल्सो इंटर्न विद देम। क्योंकि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ यूटी टेक्सला, यहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल इंटर्नशिप ढूंढने का होता है। जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आती हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं, ऑन योर ओन इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड इट। और अगर आप 4 साल गुजार दें और इंटर्नशिप ना करें तो फिर तो आप समझे आपका करियर शुरू होने से पहले ही तबाह हो गया। क्योंकि इंटर्नशिप फ्रेश ग्रेड्स को मिलना बहुत मुश्किल होती है। विद इन द यूनिवर्सिटी आप उठा लें तो बहुत फेवरेबल होता है। And the more internships you do, the more industry exposure you have, and it gives you a much better edge over others. Similarly, technology के news platforms हैं जैसे प्रो पाकिस्तानी है, फिर आपके पास टेक जूस है, इनको आप फॉलो करें, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज होती हैं, आप वहां से देख सकते हैं कि और क्या चीजें आ रही हैं। फिर कुछ कंट्री ग्रुप्स हैं प्लेटफॉर्म के जो मैंने भी पहले बताए थे। So this was a little bit about what the networking was. अभी I'm going to take a pause here and I'll take some of the questions, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी तक जो चीजें हमने स्टार्ट की थी वो 2 स्टेजेस में कवर कर चुका हूँ, लर्निंग स्किल वाली और उसके बाद दूसरी नेटवर्किंग वाली। अब इससे आगे बेसिक्स आया कि अच्छा आप प्लेटफॉर्म बनाते कैसे हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं। दैट इज नॉट दैट मच ऑफ अ टेक्निकल थिंग, बट अगर आप लोगों के कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं तो यू गाइस कैन आस्क राइट नाउ। लेट मी आल्सो सी द चैट बॉक्स इफ आई हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। Okay, I see some hand raised. साद का हैंड रेज हुआ है, so can we unmute him? अच्छा अच्छा, okay, so एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, सर इफ नॉट पेयोनियर देन व्हाट एल्स कैन बी अ गुड पेमेंट विथड्रॉल मेथड फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। अच्छा, इस इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए ना 2-3 चीजें होती हैं। एक, मुझे अगर मूसा आप ये बता दो कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स ये पूछ रहे हैं जो डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं या ये वो क्लाइंट्स हैं जो आप नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देखते हो। अगर तो ये नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, नहीं जैसे फाइवर के ऊपर पेमेंट आपने लेनी है, उसके लिए तो उनके अपने प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पेमेंट उठाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन आपका ये पेयोनियर है, दूसरा ऑप्शन आपके पास वाइज का है, WISE, वाइज। वाइज की मोबाइल ऐप भी है, आप वो सिंपल साइन अप कर सकते हो, पर्सनल अकाउंट बना सकते हो। जैसे ही आप पर्सनल अकाउंट बनाते हो तो आपके पास यूएस का बैंक अकाउंट आ जाता है, यूके का आ जाता है, कनाडा का आ जाता है। देयर आर लाइक 5-6 कंट्रीज जिनके लोकल बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं। आप वहीं से पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट करके डाल सकते हो और वहीं से पैसे रिसीव कर सकते हो। वाइज के पैसे पाकिस्तान में इंस्टेंटली डिपॉजिट हो जाते हैं, तो आप उसको देख सकते हो। wise.com है, मैं लिंक यहाँ शेयर कर देता हूँ, wise.com। आई पर्सनली यूज्ड इट, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म और ये सस्ता है पेयोनियर से। पेयोनियर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि उसे ना करें, ये कर लें, ये बहुत सस्ता है, इसमें जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो बहुत कम है। अच्छा, सो प्रीति का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि लिंक्डइन पोस्ट फ्रॉम प्रोफेशनल्स आर ऑफन हेल्पफुल एंड अदर्स जस्ट टॉक अबाउट लाइफ, हाउ डू वी नो द कंटेंट वी क्रिएट इज वैल्यूएबल? सो इट डिपेंड्स ऑन हु इज द कंटेंट टेलर्ड फॉर। जो मोस्टली लोग अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर रहे हैं ये वो लोग हैं हु आर इन लाइक लेट 40s और 50s और 60s। वो अपनी जिंदगी में सब कुछ कर चुके हैं जो उन्होंने करना था। अब उनके पास सिर्फ अपनी जिंदगी की स्टोरीज ही रह गई, भाई मैंने ये किया था, एक दफा ये हुआ था मेरी जिंदगी में। बट अगर आप एंट्री लेवल के ऊपर आते हैं, द आइडियल वे टू क्रिएट अ वैल्यूएबल कंटेंट इज कि आपका गोल ये है कि कंपनी का सीईओ या एचआर मैनेजर मुझे नोटिस करे। वो तब करेगा जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, लेट्स से ब्लॉकचेन के बारे में, बड़ी इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेज बनाकर शेयर कर रहे हैं। एंड यू डू नॉट हैव टू जज कि अच्छा ये मैंने बनाई थी, इस पे 2 लाइक्स आए हैं, इस पे 1 कमेंट आया तो मेरा दिल टूट गया, मैं अब नहीं बना रही। सो वी डोंट थिंक अबाउट दैट, वी जस्ट कीप ऑन क्रिएटिंग लाइक हेल। तो हम इस चीज को ये नहीं सोचते कि यार ये एंगेज हो रहा है नहीं हो रहा, वी जस्ट कीप क्रिएटिंग। कंसिस्टेंसी इज द थिंग दैट मैटर्स।
अल्टीमेटली आपको एक आइडिया समझ आ जाएगा व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट आर बीइंग एंगेज्ड विद। और इसमें एक और चीज ये भी मैटर करती है कि किस तरह के लोगों को आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड किया हुआ है। रैंडम बंदे नहीं ऐड करने होते। ऑलवेज ट्राई टू टारगेट द पीपल यू वांट टू कनेक्ट विद। So that is like one thing. Let me see if we have more questions. Acha, so can we connect our bank account from TransferWise? Yes, you can. वाइज का फायदा ये है कि वो आप जब आप ऑनलाइन साइन अप करते हो वो आपके बैंक की डिटेल्स लेता है। तो वो आप पर्सनल डिटेल्स दें, अपना पर्सनल डिटेल सारी अपलोड करें, तो वहां से पैसे जब आप वाइज से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डालेंगे ना, यानी आपके वाइज में लेट से $100 पर है, तो आप वो अपना अकाउंट ऐड करेंगे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, और उसके बाद पर्सनल अकाउंट पे पैसे आते हैं, कंपनी अकाउंट पे पैसे नहीं आते। सो आप वहां से पर्सनल अकाउंट की वो IBAN और ये वो बेसिक नंबर्स डालें, एक बटन दबाएं, आपके पैसे विद इन फ्यू मिनट्स आपके बैंक में होंगे, SMS आ जाएगा कि पैसे रिसीव हो गए। सो दिस इज लाइक व्हाट आई यूज पर्सनली। और अच्छा, सम पीपल, I'm sorry to interrupt you, sir. Sir, जी। I'm sorry to interrupt you. People, if you have any questions, kindly raise your hand. We'll unmute you. There's an option on your screen so where you can raise your hand. So kindly raise your hand. जी साद। I just want to thank you, Umar, for organizing such a wonderful session. It has been very enjoyable and informative. Thank you. Okay, so I think अभी हमारे पास कोई particular question नहीं है, so I'll just quickly cover some of the content that is left in the presentation. थोड़ा सा है, उसको wind up करते हैं, फिर हम इसे conclude कर लेंगे. Meanwhile, if you guys have any questions, feel free to drop them in the chat box. I'll address them. अच्छा, फिर अब हमारा जो last section है, इसको हम quickly go through कर लेते हैं. This is something that like most of you already know कि what are the platforms. So platforms में आपने ये understand करना है कि how do you find work. एक तरीका ये होता है कि यू वर्क डायरेक्टली विद क्लाइंट्स। जैसे मैंने आपको कहा, लिंक्डइन पे प्रोफाइल करा, बनाएं, ब्रांडिंग अच्छी करें, डायरेक्ट CEO से बातें करें, उनसे डायरेक्ट काम उठाएं। दैट इज वन वे। दूसरा डायरेक्ट वे मैंने आपको क्या बताया, टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, उनसे नेटवर्क करें, कंपनी से डायरेक्टली बात करें, एंड देन यू पिक वर्क ऑन द स्पॉट राइट देयर। फिर एक और तरीका ये होता है कि आपको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा बच्चा है जिसकी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बहुत चलती है, आप उसके साथ जाके सब कंट्रैक्टिंग कर लें। सब कंट्रैक्टिंग का मतलब ये होता है प्रोजेक्ट वो उठाएं, काम आप करें, और प्रॉफिट जो है वो डिवाइड कर लें। सो अगर लेट से मार्केट रेट उस चीज का $20 है, तो वो अगर आपको $5 भी देता है या $10 भी देता है, तो इट्स फाइन, आपको तो मुफ्त में बैठे बैठे काम आ रहा है ना, हमें तो पैसों से मतलब है। तो इनिशियल लेवल के ऊपर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी करते हैं, where you work for someone else who is already having lot of good clients. एक बंदा, because everyone has a certain expertise. Some people are good at finding clients, some people are good at execution. So if you can pair up together, so that can be a win-win situation from both of you. अब ये वो हैं जो जरा ट्रेडिशनल टाइप के, जरा डिफरेंट टाइप के मेथड्स थे। अब जनरली जो आपने बहुत ज्यादा सुने हुए मेथड्स, दे आर द जॉब वेबसाइट्स। कि कुछ कंपनी के कैरियर, यानी आपने जिस कंपनी में भी काम करना है या जिस कंपनी के साथ एंगेज होना चाहते हैं, उस कंपनी के अंदर कैरियर्स का पेज होता है, या उन्होंने जॉब बोर्ड का कोई पेज बनाया होता है। जस्ट राइट द कंपनी नेम एंड राइट जॉब बोर्ड। एक क्वेरी लिख के सर्च करें गूगल पे, आपको मिल जाएगा। या लेट से मैं कहता हूँ कि दराज कैरियर्स, बाइकिया कैरियर्स, इस तरह करके आप सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे उनके कौन सी ओपन पोजीशंस है या कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। अगर आपने ये भी नहीं करना, फिर जो हमारे पास बहुत कॉमन है, जिसके ऊपर लाइक बेतहाशा वीडियोस हर जगह पे पड़ी हैं, वो ये कि अच्छा अपवर पे अकाउंट बना लें, फाइवर पे बना लें, फ्रीलांसर पे बना लें, डिजाइनर्स हैं तो ट्रिपल behance पे बना लें। So these are some of the websites that you already are familiar with. I believe some of you already have accounts on them as well. और आपके जहन में कुछ सवाल होंगे, यार ये इसमें जॉब नहीं मिलती, ये नहीं होता, ये पैसे कैसे निकाल लें, ये कैसे लें, प्रपोजल कैसे लिखें। So let's discuss those in the next section. Abhi I'll just quickly go through these slides. So इसमें just quickly for those who are just starting out, the least you can do is you can create a Fiverr account and post a gig. So Fiverr account अगर आपने प्रोड्यूस करना है, तो what you do is आप simple fiverr.com पे जाएं, sign up पे क्लिक करें, you will get this kind of interface. freelancer website projects or something else. Yes. So आपके पास एक बेसिक इंटरफेस है, आप इसमें अपनी बेसिक डिटेल्स ऐड करें, अपना फोन नंबर वेरीफाई करें, यू विल गेट दिस स्क्रीन। उसके बाद
आपके पास एक इंट्रो की स्लाइड आ जाती है, यू कैन सी द वीडियोस एंड आइदर यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस ग्रीन बटन व्हिच सेज कंटिन्यू। इसके बाद आपने गिग क्रिएट करनी होती है। जब आप गिग के ऊपर आते हो तो यहाँ पर आप लिखते हो अच्छा आई विल डू, जो भी आप गिग बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारी टाइप्स बताई है राइटिंग की कि कितनी तरह की टाइप्स होती हैं। तो बिफोर मेकिंग गिग आई हाईली रिकमेंड कि आप इधर फाइंड सर्विसेज में जाकर जिस चीज के ऊपर आप काम करना चाहते हैं ना, जरा जाके सर्च करें एंड सी एटलीस्ट 30, 40 और 50 प्रोफाइल्स ऑफ द टॉप फ्रीलांसर्स विद इन योर कंट्री, कि वो लोग कैसे अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंटेशन कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव दे लिस्टेड, एंड देन ट्राई टू फाइंड कि यार ये कौन सी चीज ऐसी है जो ये नहीं कर रहे, व्हाट आई कैन डू बेटर, देन मेक अ गिग। उसके बाद आप यहाँ पे करते हो, आप कैटेगरी सिलेक्ट करो, सर्च टैग्स वगैरह ऐड करो। उसके बाद यू नीड टू क्रिएट योर ओन पैकेजेस। सो जब आप डिफरेंट लोगों के सर्च करोगे, पढ़ोगे, तो यू विल गेट एन आइडिया कि ओके किस तरीके से कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है। सो आप अपने पैकेजेस बिल्ड कर सकते हो कस्टमाइज, एंड वंस दैट्स डन, फिर आपके पास जब कोई गिग आती है तो ये एनालिटिक्स इस जगह पे शो होते हैं। और इस सारे प्रोसेस के अंदर ना देयर आर सर्टेन टूल्स व्हिच आई फाउंड रियली अमेजिंग। सो एक तो गूगल सूट अगर आपको यूज करना नहीं आता तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इनके टूल्स जरूर देखें। HubSpot का एक प्लेटफॉर्म है, इट इज रियली हेल्पफुल इफ यू हैव अ पर्सनल वेबसाइट। तो वहां पर अगर आप अपने क्लाइंट मैनेज करना चाहते हैं तो आप HubSpot को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका प्लेटफॉर्म है। अगर आप स्केजुलिंग करना चाहते हैं अपने गोल्स की, कि गोल्स अगर आपने देखने हैं कि यार मैंने गोल बनाया है कि मैंने लेट से 5 प्रपोजल्स बनाने हैं एंड यू वांट टू मेक योरसेल्फ सेल्फ अकाउंटेबल, तो आप वीक डन पे जाके स्केजुलिंग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने अपना टाइम ट्रैक करना है या आपने कोई एम्प्लॉय हायर किया है उसका अगर आप टाइम ट्रैक करना चाहते हैं तो आप टाइम डॉक्टर के टूल के ऊपर जाकर काम कर सकते हैं। वैसे अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स मैनेज करना चाहते हैं तो आप एयर टेबल इज अ ग्रेट टूल जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इट्स लाइक एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ MS एक्सेल या गूगल शीट्स का एक बहुत एडवांस वर्जन है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है टेबल के अंदर। सो इफ यू हैवंट एक्सप्लोर्ड इट तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ये इस्तेमाल होता है। आइडियली इट इज रिकमेंडेड कि अगर आप एक लार्ज डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं या आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनका आपने कोई हिसाब किताब बनाना है, कोई कंटेंट कैलेंडर बनाना है, वो आप एयर टेबल में बना सकते हो। सिमिलरली आपने कोई अगर अपनी स्केजुलिंग के लिए मीटिंग सेट करने के लिए कोई एक टूल सेट करना है कि कोई बंदा आपसे मीटिंग ऑनलाइन बुक कर सके विदाउट द ईमेल वाला प्रोसेस कि अच्छा आप कब अवेलेबल है, नहीं मैं इस टाइम अवेलेबल नहीं हूँ, इससे जान छुड़ाने के लिए यू जस्ट सिंपली मेक अ कैलेंडरी लिंक और उस कैलेंडर को आप अपने कहीं ना कहीं लिंक को अपनी प्रोफाइल में डाल लेते हैं। So these were like pretty much basic things which I wanted to discuss. Now the floor is open for questions, or let's see what you guys have to ask. Okay, so Thank I you have so a much, sir, for sharing us with your vast knowledge. We Thank go you. ahead and take some time for questions now. Please raise your hand. There is an option on your screen, or you can also type in the chat box. I will allow you one by one. It looks we have some questions. Okay, so we have one question. I think Saklan has asked in the chat box, sir, the freelancer website projects are something else. You will make a project if you accept, then can you guide me how should the freelancer? Thanks. Okay. So I think आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो मैंने फाइवर का मॉडल बताया है, what happens in that you make your packages and then clients come and pick and choose. जो अपवर्क का मॉडल है या जो फ्रीलांसर वेबसाइट का मॉडल है, इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। उसमें ये होता है कि क्लाइंट्स ने ऑलरेडी प्रपोजल्स पोस्ट किए होते हैं और उसमें आप जाकर बिड करते हैं या उसके अंदर आप अपना प्रपोजल देते हैं। सो दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग। तो वो एक डिफरेंट डोमेन है। सो इफ यू वांट तो उसके ऊपर फिर हम कोई सेपरेट वर्कशॉप अलग से रख सकते हैं जिसमें हम सिर्फ उसी को डिस्कस करें। Okay, so Saad is asking a few words on how to make gigs on Fiverr that are attractive. अच्छा ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसको मैं एड्रेस कर देता हूँ कि अगर आपने गिग बनानी है तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए। सो गिग बनाने का अगर आप काम करना चाह रहे हो, सो व्हाट यू डू इज यू गो ऑन लेट्स से fiverr.com. So before you start making your own gig, the first thing that you need to do is let's say मैं कहता हूँ मैंने कंटेंट राइटिंग करनी है, तो मैं जाकर अभी देखिए मैं अभी बाइंग वाले मोड के अंदर हूँ, सेलिंग वाले मोड में नहीं हूँ, मैं बाइंग वाले मोड में। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ जाकर लिखा कि मुझे एक कंटेंट राइटर फॉर वेबसाइट नहीं चाहिए, मुझे कंटेंट राइटर फॉर SEO राइटर फॉर ब्लॉग्स चाहिए।
ठीक है, तो मैं ये अब मैं सोच में आई बिलीव दैट आई एम अ रियली गुड ब्लॉगर एंड आई हैव अ फेयर नॉलेज ऑफ SEO. Now what I want to do is I want to explore how the people all across the world have made their profiles. तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए कंटेंट एसईओ राइटर फॉर ब्लॉग्स, इस कीवर्ड के लिए 62,000 सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल है. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कुछ फिल्टर्स लगाएंगे. हम यहाँ पर ये देखते हैं कि लोकल सेलर्स कौन से हैं. दैट मीन्स के पाकिस्तान के सेलर्स कौन से हैं. तो अगर मैं देखूं तो 62,000 में से 30,000 यानी 50% ऑफ द पीपल आर फ्रॉम पाकिस्तान. तो दैट इज क्वाइट एन अचीवमेंट जो हम लोगों ने अभी तक अचीव किया. अब हम ये देखते हैं कि सर्विस ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि जब क्लाइंट आएगा तो वो यही देखेगा भाई मैं किस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ, किस टॉपिक के अंदर मैं देख सकता हूँ. तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं ब्लॉगर देख रहा हूँ तो किस तरह का ब्लॉगर देख रहा हूँ. तो आप देखें ये सारे मेजर पॉपुलर वो हैं, नीश हैं जिनके ऊपर ब्लॉगिंग होती है. तो आपको नजर आ रहा है कि ट्रैवल की बहुत कम लोग ब्लॉग्स लिखवाते हैं. जनरल ब्लॉग्स लिखने के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं. हेल्थ मेडिकल पे भी लोग लिख रहे हैं, लाइफस्टाइल पे भी लिख रहे हैं. थोड़ा सा बंदे को आइडिया हो जाता है कि डू यू वांट टू compete in a high volume market or do you want to compete in a niche which is somewhat growing right now. अब जैसे मैं अगर देखूं लिटरेचर के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं और मैं इसे कर देता हूं फॉर एग्जांपल अप्लाई, तो आप देखें यहाँ पे लिटरेचर की ब्लॉग्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट होके आ गई हैं. अब इसमें दो तीन चीजें होती हैं जो देखनी होती हैं. पहली चीज ये होती है कि आप ये देखते हो कि ये जो ब्लॉग है इसका हाउ टू नो विच नीच इज ग्रोइंग. सो द वे यू अंडरस्टैंड इज के उस किस नीच में ज्यादा लोग कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो वन वे इज टू लाइक रीड मीडियम, वहां से आपको थोड़ा सा ट्रेंड पता चल जाएगा. लिंक्डइन पे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करें, वहां से ट्रेंड पता चल जाएगा. जैसे आजकल जो ज्यादा ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है वो Web3 टेक्नोलॉजीज की तरफ हो रहा है. So every company out there is trying to connect blockchain. Every company out there is trying to somewhat get NFTs inside their business model. तो आजकल ट्रेंड उस चीज पे ज्यादा चल रहा है. ये जो बेसिक ट्रेंड्स हैं ये आपको डिफरेंट कम्युनिटी से पता चलते हैं. जैसे आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, आप लिंक्डइन को लिंक्डइन देखें, आप जो टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंसेज है वहां पे जाएं, जो मैंने आपको मीडियम्स बताए ना वहां जाएंगे तो वहां से आपको पता चलेगा अगला ट्रेंड कौन सा आ रहा है. तो व्हाट यू डू इज यू राइट दोज, यू क्रिएट फाइंड अ ट्रेंड. जब आपको ट्रेंड पता चल जाता है फिर आप जाके देखते हो कि इस ट्रेंड के अंदर लोग पहले कंटेंट प्रोड्यूस कर कैसे रहे हैं. अपनी गिग बनाने से पहले 1-2 घंटे या एटलीस्ट 1-2 दिन इस पे लगाएं सिर्फ रिसर्च पे. अगर आप ये रिसर्च तमीज से कर लेंगे ना आपकी आधी जिंदगी यही आसान हो जाएगी. अब इसमें देखें एक ये गिग है और एक ये गिग है. अब इन दोनों में हम फर्क देखते हैं. इस वाली के अंदर बहुत ही उसने प्रॉपरली लिखा हुआ है एसईओ कंटेंट राइटर, इजी टू रीड, प्रोफेशनल, यूनिक, ऑर्डर नाउ. ठीक है, एक बेसिक्स उसने डाला हुआ है बट इट इज प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अब इसमें अगर मैं देखूं तो इसे अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं मिला. आई गेस इसने बनाई भी तो है लेकिन इसे कोई ऑर्डर नहीं मिला. दैट मीन्स कि ये हमारे किसी काम का नहीं है. लेकिन आप उसे देख सकते हैं कि ओवरऑल इसने किस तरह से बनाया हुआ है, क्या किस तरह से इंट्रोड्यूस किया हुआ है अपने आप को, क्या किया हुआ है. इसी की जगह अगर हम देखते हैं एक और जो मैंने ये खोली है. सो व्हाट happens is some people use free online tools और वो उसको यूज करते हुए इस तरह की वीडियोस बना लेते हैं. अब ये सिंपल ऑनलाइन टूल्स हैं, उनसे ये बड़े आराम से फ्री वीडियोस बन जाती हैं. Now this is a bit unique thing. आप इस तरह से भी बना सकते हैं. और उसके नीचे इसने देखें सेम तकरीबन वही चीजें डाली हुई हैं लेकिन इसको भी अभी तक कोई ऑर्डर्स नहीं मिले. तो अब आप पहले इनको एनालाइज करते हैं कि किनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, किनको नहीं मिल रहे हैं. एंड देन यू ऑल्सो ट्राई टू एनालाइज कि वो कौन से लोग हैं जो प्रो सेलर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर डालूं प्रो सर्विसेज, तो प्रो सर्विसेज जो है सिर्फ 331. अच्छा इस नीश के अंदर नहीं है, सॉरी, लिटरेचर से हम निकाल देते हैं. सो प्रो सर्विसेज का मतलब ये है कि कौन से पॉपुलर राइटर्स हैं जिनको बहुत गिग्स मिलती हैं, जिनको बहुत बिजनेस मिलता है. तो इसके अंदर देखें गेट एंगेजिंग क्रिप्टो एंड एनएफटी कंटेंट. ये मैंने आपको बताया था ना क्रिप्टो बहुत पॉपुलर है. So, इसको बहुत ज्यादा गिग्स मिल रही हैं. सो लेट्स सी व्हाट ही हैज डन. अब ये प्रो वेरीफाइड सर्विस है. तो क्रिप्टो के अंदर देखें इसने अपने टॉपिक्स कैसे बिल्ड किए हुए हैं, अब इसने अपना कंटेंट कैसे लिखा हुआ है. अब ये इसने यहाँ पर किसी काम किया तो उसके बारे में उसने यहाँ मेंशन किया हुआ है. अब इसकी देखें, इसकी काफी डिटेल्ड और बड़ी प्रॉपरली इसने कस्टमाइज की हुई अपनी गिग. और उसके नीचे उसने बाकी डिटेल्स भी लिखी हैं, प्रोफाइल भी पूरी है.
इसके अंदर भी इसने डिटेल्स ऐड की हुए हैं, प्लान्स इसने डिटेल बनाए हुए हैं। तो आप इस तरह करके ना डिफरेंट सर्च करते हैं कि पाकिस्तान में लोग कैसे कर रहे हैं, एंड देन व्हाट यू डू इज यू रिमूव दिस फिल्टर ऑफ लोकल सेलर्स। फिर बाकियों को ऑब्जर्व करते हैं कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, उसमें टॉप के लोग कौन से हैं, उन्हें कितना बिजनेस मिल रहा है, एंड सो ऑन। अब ये प्रो वेरीफाइड वालों को आप चेक करें और आप नॉर्मल वालों को चेक करें। अब इसके पास कोई 282 है जो इसने किए हैं, तो ये देखें इसने अपनी डिटेल्स ऐड की हुई हैं। इसका अगर आप देखें कि इसने अपनी प्रोफाइल कैसे मेंटेन की हुई है, सिर्फ प्रेजेंटेशन पे फोकस करें, हाउ दे हैव प्रेजेंटेड, कि क्यों उनको जो है वो चीजें ऐसी मिल रही हैं। अब वो कह रही है पोर्टफोलियो अवेलेबल है रिक्वेस्ट के ऊपर, इसने बाकी चीजें यहाँ डाली हुई हैं। इसके क्लाइंट का काम आप देखें, सारी चीजें देखें किस तरीके से उसने शोकेसिंग किया है। जब ये सारा आप देख लेते हैं ना, फिर अपनी गिग बनाना शुरू करते हैं। सो आई होप दिस थिंग इज अ लिटिल बिट अंडरस्टूड कि अच्छा आपने करना कैसे है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, लेट मी सी। सो आशय पूछ रहे हैं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, यूईटी, फाइवर एंड अपर असाइनमेंट्स भी पोस्ट होते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स एंड न्यूमेरिकल्स, वो भी हम कर सकते हैं। लाइक इज इट एथिकल किसी का असाइनमेंट करना एज अ फ्रीलांसर? सो आइडियली आई वुड से कि वैसे तो अनएथिकल होता है, लेकिन इफ इट्स नॉट फ्रॉम लाइक, if you can do it and if it is a client who is posting it, that's fine, you can do it. लेकिन जनरली एकेडमिक राइटिंग जो होती है उसके अंदर हम रिकमेंड नहीं करते कि आप ना करें, बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट अनएथिकल है, इलीगल नहीं है, अनएथिकल है। इसके अलावा नौरीन ने पूछा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिप्टो इन फ्रीलांसिंग एज कंटेंट राइटर? देखिए, क्रिप्टो इज जस्ट अ टॉपिक। इस टॉपिक को आप सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से चेंज कर लें। आप कहें जी मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पे आर्टिकल लिख के दूंगी, मेरी गिग बनी हुई। आप अपनी पूरी लिंक्डइन की प्रोफाइल या बाकी जॉब की प्रोफेशनल प्रोफाइल उन्हें ब्रांड ही सिविल इंजीनियरिंग पे करें, और जब आप सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो आप उसमें जाके मेंशन करें कि मेरी, अगर आप कंटेंट सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आई आल्सो प्रोवाइड देम, मेरी ये प्रोफेशनल प्रोफाइल है। अच्छा, फिर मूसा पूछ रहे हैं, हाउ टू अवॉइड एंड रिकॉग्नाइज ऑनलाइन स्कैम्स ऑन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स? फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स सिर्फ आई वुड रिकमेंड कि आप जो वेरीफाइड है ना, सिर्फ उन्हीं पे जाएं। जैसे अपवर्क है, फाइवर है, ये वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं। इनके अंदर पेमेंट जो होती है वो प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रही होती है और वो एस्क्रो के थ्रू आ रही होती है। द प्लेटफॉर्म टेक अ सर्टेन फी, तो वो सेफ होती है। लेकिन जो वैसे आपको फेसबुक ग्रुप के अंदर मिलते हैं ना, उसमें बहुत स्कैम्स होते हैं। अगर आपको कोई वहां से कनेक्ट भी करता है तो आई हाईली रिकमेंड कि आस्क देम टू हायर यू ऑन फाइवर और अपवर्क। ऐसे डायरेक्ट काम लोकल मार्केट में ना किया करें अनलेस और अनटिल वो कंपनी रजिस्टर्ड हो, वेरीफाइड हो, दे हैव स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, और कोई 10-12 लोगों ने उनसे काम किया हो और वो पॉजिटिव रिव्यू देते हो। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, उसके बाद आई थिंक वी डू नॉट हैव एनी मोर क्वेश्चंस। इफ यू गाइस हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज फिर हम इसे यहाँ कंक्लूड करते हैं। It seems you have covered all of our questions, sir. Okay, thank you so much. I think we can conclude now, Nihal. Sir, is there anything you would like to say before we wrap up? Yes, I would just like to end on this note that whatever you guys are doing right now in university, the valuable asset which you have is your time. So make sure कि आप अपने time को use करते हुए कोई ना कोई skill set जरूर सीखें. It is okay to learn what you are doing technically in your particular industry, लेकिन जो future है that is all technology. So try to learn some digital skills as well, which can complement your primary skill set. अब मेरी जो वैसे इंजीनियरिंग है दैट्स एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. आई डिड अ कंप्लीट करियर शिफ्ट. आई वेंट इनटू द बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइड बिकॉज आई वाज रियली गुड एट पिचिंग, आई वाज गुड एट प्रेजेंटिंग, आई वाज गुड एट मेकिंग वेब प्रेजेंटेशंस, वेबसाइट्स, वॉलंटियरिंग का बहुत शौक था. सो आई वाज लाइक काइंड ऑफ अ मार्केटिंग गाय एंड अ कंटेंट गाय. मैंने अपना करियर स्टार्ट ही कंटेंट से किया था. आई वाज अ ब्लॉगर और उसके बाद मैंने वहां से प्रोजेक्ट मैनेजर बना, वॉलंटियर्स एनजीओ के साथ वॉलंटियर करता रहा. फिर वहां जाके सीखा कि अच्छा ये प्लेटफॉर्म बनाते कैसे हैं, रन कैसे करते हैं. फिर इंक्यूबेशन में जाके सीखा कंपनी कैसे बनाते हैं, एक्सेलरेशन में जाके सीखा टीम कैसे मैनेज करते हैं. फिर कोई ग्रांट्स वगैरह विन किए एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड आई हैव बीन लाइक एक्सपेरिमेंटिंग एंड फेलिंग. सो हमेशा ये अपने ज़हन में रखें कि जितना स्किल सेट आप यूनिवर्सिटी में टाइमली उठा सकते हैं उठा लें. Once you graduate, everyone will start expecting in your family, in your friends and family circle कि अच्छा तुम्हें जॉब नहीं मिली. एवरी डे व्हेन यू हियर दिस थिंग ना, अच्छा अभी तक तुमने कुछ कमाना नहीं शुरू किया, कोई जॉब नहीं मिली, इट्स वेरी डिप्रेसिंग. अभी स्किल सेट स्ट्रांग होगा और अभी से फोकस करेंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपनी डिजिटल प्रोफाइल्स पे,
अपने short term और long term goals पे, it would add a lot of value in that. So with this, I think I would conclude my session. Wish you good luck and thank you. Great. Thank you, everyone. I would like to thank our honorable speaker, Sir Syed Umar Amir, for taking time out of his busy schedule and benefiting us with his expertise. We are very grateful for your time and effort, sir. Your ability to present the subject in such an interesting way produced one of the most memorable evenings. We hope to hear from you again, sir. Thank you. Likewise. Allah Hafiz. Special thanks goes to our Vice President, Ms. Minahil Nisar. Ms. Minahil Nisar, I would like to say a few kind words from you. Over to you. Thank you very much. I'm very grateful to you, sir, for taking time out of your busy schedule. Your presence and wise words really helped in clearing our concepts regarding the content writing and freelancing. It was a very informational session for all of us. And for the audience, I hope this session would have increased your knowledge about content writing and freelancing. And it would help you in your professional life ahead. Thank you very much. Thank you so much. It's a pleasure to hear those kind words from your side. Thanks to our team, especially. Without each one of you, it might not have been possible. The motivation which you all handled the event was truly exceptional. I sincerely appreciate your role and hope that the good work continues in the future as well. At the end, you are requested to give us your precious feedback form, everyone. A link to feedback form will be shared with you all in your WhatsApp group, everyone. All of you are requested to fill that form in order to claim your e-certificates. Hope you guys learned a lot throughout the event. Stay blessed and positive. Take care and Allah Hafiz. Thank you, everyone.